respected dignitaries, esteemed guests of the morning, valued HODs, cherished faculty members, and my lovely students. I believe that the greatest gift you can give your family and the world is healthy you. As young minds are like sponges and they are looking for the right input to soak in it. The management of College of Engineering Roorkee Co always believe in organizing lectures by eminent speakers. Today, we cannot think of a person more suited to this, Dr. Biswaroop Roy Chaudhary, to whom, with a spring in my step and anticipation in my heart, I extend a warm and a hearty welcome. I would request our respected chairman, sir, to please give him a flower bouquet and welcome him in this campus. Today we are indeed grateful to this eminent personality, Dr. Biswaroop Roy Chaudhary, who is going to share his valuable information on a topic entitled Food as Medicine. Sir, we all are waiting with full adherence to listen your insightful advice. But before that, I would like to introduce him. He is a good human being who has indomitable spirit to help others for their health issue and who shares his knowledge with all the people on YouTube. He has a great followers. Ladies and gentlemen, Dr. Chaudhary is an internationally acclaimed Indian medical nutritionist with PhD Diabetes Alliance University, Zambia. He is an honorary advisory board member of the School of Oriental Sciences, Srinagar University, Pilani, Rajasthan. Advisor to Research Institute of Complementary Health Sciences. He is an author of more than 25 books. Dr. Chaudhary has successfully developed 3-step protocol called the DIP diet to reverse diabetes in 72 hours. Dr. Chaudhary runs his center in India, Vietnam, Malaysia and Switzerland and conducts his highly popular programs called the 72 Hours Diabetes Tour. His research work has been published in reputed medical journals. We are all lucky enough that today we have with us Dr. Biswaroop Roy Chaudhary, who has a long list of followers. Let us waste no more time and welcome with warmth in our heart and with a resounding round of applause. Please give a big hand for him. Before inviting him for his valuable talk, I would like to invite a librarian of College of Engineering Roorkee, who is a great follower of him, to say a few words in his appreciation. Please, Tatya sir, where are you? Madam, Dr. Vyasi sir, our director, faculty members and my dear students. मैडम ने सारी चीज बता दी, मैं केवल शॉर्ट में केवल एक मिनट दूंगा। 2017 की बात थी, सर का पंजाब में एक सेशन हुआ था। उससे पहले की बात, उसी समय मैं 40 में पहुंचा था, अभी 44 में चल रहा हूँ। तो हमने सोचा कि 40 के बाद लगता है कि एक फिजिकल रूटीन जो चेकअप होना चाहिए तो करा लेना चाहिए। कभी सिविल की अगर 4th फ्लोर पे आता था तो मुझे लगता था कुछ कंडीशन हो रहा है, हो सकता है कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया हो। तो हमने थायराइड से एक पूरी उनकी डिटेल मांगी, तो उनकी कुछ कंसेशनल प्राइस थी, तो लगभग उन्होंने 3700 रुपए में मुझे बॉडी का चेकअप का पूरा डिटेल दिया कि आपके ये लिपिड प्रोफाइल होना चाहिए एवरीथिंग। तो मैं तैयार हो गया, तो उनसे पूछा कि ठीक है आप ब्लड का सैंपल ले लीजिए, मुझे इसकी डिटेल दे दीजिए। उसी समय आपका पंजाब वाला सेशन शुरू हुआ, तो जो 2 घंटे 44 मिनट का ब्रेक था, तो वो इस पे YouTube पे चैनल मुझे शो हो गया, तो मैंने पूरा वीडियो आपका देखा। इससे पहले आपकी किताबें आ चुकी थी, तो मैं 2-3 किताब आपकी पहले पढ़ चुका था, एक हमारी लाइब्रेरी में भी है, मेमोरी में भी, और ये भी पता था मुझे कि आप रिकॉर्ड बना चुके थे। तो रिकॉर्ड तो लगभग सबको ही पता है कि सर ने बनाया है
1 मिनट में शायद 198 पुशअप था। तो पूरे वर्ल्ड में आप अपने एक बार ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं और एज पर माय नॉलेज एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि सर इसका अराउंड 48 49 समथिंग 48। तो जहाँ तक मेरी नॉलेज थी कि मतलब इवन आप बिल्कुल अभी तक जैसा मैं आपको पहले से देख रहा हूँ वैसे के वैसे ही। अभी चेयरमैन सर से यही बात हो रही थी कि हमारे चेयरमैन सर भी 74 पे एक्टिव, उसके बावजूद भी सारा उनका फिजिकल फिटनेस ऐसी की वैसी रहती है। और दूसरी चीज एक तो सर ने उसका बनाया था मेमोरी मैन के नाम से सर ने रिकॉर्ड बनाया था। तीसरा 72 आवर में नेचुरोपैथी से डायबिटीज क्योर, केवल डायबिटीज कंट्रोल नहीं डायबिटीज क्योर का रिकॉर्ड बना चुके। चौथा एक रिकॉर्ड और ऐसा है जो शायद अभी किसी को ना मालूम हो, ड्यूरिंग लॉकडाउन 2020 में डॉक्टर बियासी सर के सारे YouTube चैनल फेसबुक से जो वीडियो डिलीट हुए, तो ये एक डिलीटेड मैन के नाम से पूरे में सबसे ज्यादा फेमस होंगे कि सर के सारे वीडियो जो भी आते थे, कई बार तो वीडियो आते थे घर पे देखता था और डिलीट मतलब पूरा सुन नहीं पाते तो उससे पहले डिलीट हो जाते थे। तो मैं रिक्वेस्ट करता था व्हाट्सएप पे कि सर देखिए इसको पूरा सुन तो लूं क्या था। और मतलब बहुत सी चीजें थी जो मैं पब्लिकली नहीं बता सकता हूँ इस माइक पे खड़े होके, लेकिन जो एक हेल्थ और न्यूट्रिशन वाला आपका जो पार्ट है अल्टीमेट, ये हम लोगों का एक बहुत अच्छा प्रिविलेज है, स्पेशली जो हमारे यंगस्टर हमारे स्टूडेंट हैं और हम सभी के लिए कि जो और हम क्योंकि मेडिकल से जुड़े हुए हैं रिसेंटली, तो हम चाहते हैं कि इसको हम हेल्थ एजुकेशन को अपने पार्ट बनाएं और सभी के लाइफ का अच्छी हो। तो बस इतना मुझे कहना है। थैंक यू सो मच। चेयरमैन सर केसी जैन जी और मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे लिए काम थोड़ा आसान है बिकॉज यहाँ पे ज़्यादा स्टूडेंट्स अभी जैसे मैंने देखा, मैंने पूछा भी आपसे इंजीनियरिंग के हैं मैनेजमेंट के हैं, बस यही दो चीज़ की आवश्यकता है अगर आपको अपने बॉडी की इंजीनियरिंग को मैनेज करना है तो दैट इज द ओनली थिंग। और यहाँ पे टू स्टार्ट विद देखिए ये सेशन मेरे ख्याल से 45 मिनट्स का होगा और इसमें मेरी कोशिश होगी, यहाँ तो है फूड एंड मेडिसिन, मतलब साफ है कि फूड को ऐसे खाओ कि मेडिसिन की तरह काम करे, लेकिन उससे पहले आपको ये समझना जरूरी है अपने लिए नहीं अपने पेरेंट्स के लिए। मेडिसिन एंड मेडिसिन आप सबने अपने पेरेंट्स को देखा है कि अक्सर सभी ने देखा होगा, पता नहीं एक छोटी सी टैबलेट लेके वो खा लेते हैं, बोलते हैं डायबिटीज है, कोलेस्ट्रॉल है, हेमन जी बता रहे थे यहाँ बीपी है, यही सारी चीजें वो ऐसे हो गए जैसे कि टॉफी को खाना, जैसे बचपन में टॉफी खाते थे बच्चे वैसे ही खाते हैं। तो जबकि आज से 20 साल पहले 30 साल पहले ऐसा कोई कस्टम था नहीं। अभी अगर मैं आप सबसे पूछूं कितने लोग ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स दवा नहीं लेते, कोई भी दवा नहीं लेते, तो बहुत थोड़े से लोग मिलेंगे या शायद नहीं मिले, राइट। तो जब कोई दवाई लेता है कोई भी आदमी, उसके बाद वो पेट के अंदर जाता है, जाने के बाद क्या होता है उसका, ये बात जो है एक डॉक्टर नहीं समझ पाएगा, ये बात एक इंजीनियर समझ पाएगा। तो आपके लिए समझना आसान होगा, राइट। तो आप समझेंगे तो ये समझ जाएंगे। आपने देखा होगा कई बार एक अच्छा हेल्दी इंसान बिल्कुल मार्केट में मिले आप बिल्कुल ठीक, और अचानक कुछ समय बाद अगले दिन पता चला उनको तो हार्ट अटैक आ गया था, कार्डियक अरेस्ट हो गया था, वो तो मर गए। हमें शौक लगता है यार 40 साल का आदमी है या 30 साल का आदमी है, 50 साल का आदमी है, कल तो हंस रहा था, इनको तो हार्ट अटैक हो गया, राइट, ये तो मर गए। तो जब उनको हो सकता था हमें भी हो सकता है। अभी आपने सुना होगा, अभी हम बातचीत कर रहे थे सौरव गांगुली, वो तो क्रिकेटर भी है, एक्सरसाइज भी करते हैं, जाहिर सी बात है डाइट का ध्यान रखते होंगे, उनके आगे पीछे बहुत सारे डॉक्टर्स होंगे जो रेगुलर चेकअप कराते होंगे, उसके बाद भी हार्ट अटैक आया, हार्ट अटैक आने के बाद इलाज भी करा लिया, फिर हार्ट अटैक आ गया। जब उनको हो सकता है सभी को हो सकता है। आप सब पढ़ाई कर रहे हैं, आप सबका कोई ना कोई गोल है, पूरे दिन मेहनत करते हैं, आपके पिताजी का पैसा भी लगता है ताकि कहीं पहुंचना है, लेकिन वो जो हमारी जीवन का जो एक सफर है वो बीच में अगर इस तरह की अनसर्टेनिटीज, हार्ट अटैक जैसी चीजें जो किसी को भी हो सकती है, हमने देखा ही है, उसके लिए कोई उम्र भी नहीं है कि ये अनहेल्दी है तो इसको हो जाएगा, ये हेल्दी है तो इसको नहीं होगा, राइट। आपने देखा कि किसी को भी हार्ट अटैक की खबर मिलती है, ऐसा कौन है जिसके आसपास कोई ना कोई कभी ना कभी हार्ट अटैक से नहीं मरा। तो इसके पीछे का जो मैकेनिज्म है, वो मैकेनिज्म अगर आपको पता चल जाए तो आप बच सकते हैं हार्ट अटैक प्रूफ, राइट। वो जो मैकेनिज्म है, वो मैकेनिज्म समझने के लिए आपका दिमाग इंजीनियरिंग दिमाग का होना चाहिए, ना कि
मेडिकल दिमाग का। और क्या है कि एक इंजीनियर कभी मेडिसिन नहीं पढ़ता और एक डॉक्टर कभी इंजीनियर नहीं बनता, इसीलिए वो जो गैप है वो गैप रह ही गया है। और सबसे ज्यादा हार्ट अटैक इनको आता है, सबसे ज्यादा हार्ट अटैक तो डॉक्टरों को आता है। तो जो खुद के हार्ट अटैक को नहीं बचा पा रहे वो आपके हार्ट अटैक को कैसे बचाएंगे? भारत में सबसे ज्यादा बीमार कौन लोग हैं? वो डॉक्टर ज्यादा बीमार हैं। आप किसी भी डॉक्टर को देखिए, उनके स्ट्रक्चर को देख के आप बता सकते हैं कि वो कितने बीमार हैं। तो जो खुद बीमार है, डायबिटीज के डॉक्टर खुद ही डायबिटीज पेशेंट है, तो वो आपका इलाज क्या करेंगे या किसी का इलाज क्या करेंगे? क्योंकि वो इंजीनियर नहीं है, और जो इंजीनियर है वो शायद डॉक्टर नहीं है। तो आपको दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा। कंबाइन करने का काम शुरू करते हैं अभी क्विकली। देखिए, एक सिंपल सी बात मैं करता हूँ कि व्हाट इज ब्लड प्रेशर। तो एक ही चीज समझ जाएंगे तो आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा। बड़ा सिंपल है। ब्लड प्रेशर क्या है? ब्लड प्रेशर अक्सर हम सुनते रहते हैं। अब मान लीजिए जैसे यहाँ से एक सांप अचानक आ जाए, तो मैं जैसे देखूंगा तो चौंक कर बाप रे आ गया, राइट? मेरा ध्यान सांप पे होगा, मैं चौंक जाऊंगा, घबरा जाऊंगा, जंप करूंगा, नहीं आप बचाऊंगा। उस वक्त अगर आप मेरा ब्लड प्रेशर चेक करेंगे तो आएगा 250/150, हाई ब्लड प्रेशर, है ना? अब अगर आप डॉक्टर को बोलेंगे डॉक्टर इनका ब्लड प्रेशर 250/150, डॉक्टर क्या बोलेगा? ये तो हाई ब्लड प्रेशर है, क्योंकि वो ब्लड प्रेशर जो है वो हाई है और वही वो बोलेगा, राइट? तो लेकिन अब इसको समझिए ये हुआ। इमेजिन कीजिए एक ज़ीब्रा जंगल में है और उसको भनक लगती है, कुछ आवाज आती है और उसे एहसास होता है कोई शेर आसपास है, तो क्या होगा? उसकी दिल की धड़कन तेज हो जाएगी, उसके कान ज्यादा सुनने लगेंगे, उसकी आंखें ज्यादा शार्प हो जाएंगी और उसके बॉडी में फुर्ती ज्यादा, तैयारी ज्यादा, भागने के लिए या लड़ने के लिए, फाइट और फ्लाइट। इस वक्त अगर उस ज़ीब्रा का ब्लड प्रेशर चेक किया जाए, इट विल बी कॉल्ड एज हाई ब्लड प्रेशर। तो जो हाई ब्लड प्रेशर है वो आपका एक डिफेंस मैकेनिज्म हुआ ना, वो आपको बचाने के लिए, ना कि आपको मारने के लिए है, राइट? उस वक्त मेरा ब्लड प्रेशर हाई अगर नहीं होगा तो क्या होगा कि मैं वो डरूंगा नहीं, मैं अलर्ट नहीं होगा और मैं खड़ा ही रह जाऊंगा और जो सांप मुझे काट भी सकता है उसके लिए मैं तैयारी नहीं कर पाऊंगा, राइट? तो जो हाई ब्लड प्रेशर है वो एक मैकेनिज्म है आपको अलर्ट करने का, इमरजेंसी में आपको सिग्नल देने का, राइट? तो ये भगवान का बनाया हुआ आदि मानव टाइम से ये है। अब क्या है कि तो ये बीमारी कैसे बनती है? हाँ, अब क्या है कि सांप आ गया और मैं घबरा गया, तो सांप को आप लोगों ने भगा दिया, लेकिन अब जितनी बार मैं यहाँ पे खड़ा हूँ मेरे दिमाग में क्या चल रहा है? दोबारा ना आ जाए, तो यहाँ से तो भगा दे, लेकिन दिमाग वाला सांप ज्ञानी है, तो दिमाग में सांप बैठा है तो मेरा ब्लड प्रेशर अभी भी हाई रहेगा या नहीं रहेगा? तो अब जब तक ये दिमाग वाला सांप रहेगा, जो भी कितनी भी देर तक रह सकता है, कितने भी दिनों तक रह सकता है, तब तक मेरा ब्लड प्रेशर भी पार्शियली हाई रहेगा। एक टाइम आएगा जब दिमाग बोलेगा कि हमेशा ही खतरा रहता है, तो दिमाग सोचेगा इस इंसान का ब्लड प्रेशर थोड़ा हाई ही रखा जाए, क्योंकि तो खतरे में ही रह रहा है, राइट? क्योंकि वो वाला एहसास मैंने दे दिया, क्योंकि एक्चुअल खतरा है नहीं। नाउ आई एम ए हाई ब्लड प्रेशर पेशेंट। अब आप बताइए इस ब्लड प्रेशर को कम करने की दुनिया की कौन सी दवा है? क्योंकि इसका जो जड़ जो कारण है, उस कारण को हटाएंगे नहीं, तो अब अगर आप कोई दवाई देंगे भी, अब ये दवाई जो देते हैं, दवाई कैसे काम करती है? मैं एक दवाई का एग्जांपल दूंगा, क्योंकि मैंने अभी बताया हार्ट अटैक होता है, कैसे होता है वो मैं बताना चाहता हूँ, इसलिए बताना चाहता हूँ ताकि अगला हार्ट अटैक को आप रोक पाएं, राइट? तो ये टॉपिक की तरफ बढ़ते हुए एक उदाहरण ये मानते हुए कि आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है, मैनेजमेंट के स्टूडेंट है, मैं एक सिंपल सा उदाहरण दूंगा। मान लो एक ब्लड प्रेशर की बड़ी सिंपल दवा है लिसिनोप्रिल। नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई ना कोई नाम लेना था तो मैंने एक नाम ले लिया। जब वो दवाई कोई खाता है तो उसका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, राइट? खाएंगे तो ब्लड प्रेशर कम। एक्चुअली वो क्या करता है, उस इंसान के हार्ट को कमजोर कर देता है। अब हार्ट कमजोर हो जाएगा तो ब्लड प्रेशर तो कम हो गई, तो क्या यही चाह रहे थे क्या? आप तो ये नहीं चाह रहे थे, राइट? अब ये एक सिंपल सी बात मैंने अभी बताई, साइकोलॉजिकल फैक्ट ऑफ हाई ब्लड प्रेशर। साइकिल आपकी जो माइंडसेट है वो ब्लड प्रेशर को या बीमारी को कैसे पैदा करती है, रिटेन करती है, राइट? तो एक तो साइकोलॉजिकल पार्ट है, एक फिजियोलॉजिकल पार्ट। फिजियोलॉजिकल पार्ट बड़ा आसान है। मान लीजिए ये एक पाइप है और एक टैप में फिट कर देते हैं और आगे इंजीनियरिंग वाली बात, टैप ऑन कर देते हैं, वाटर प्रेशर, राइट? अब मैं पाइप को दबा देता हूं तो वाटर प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा? पाइप को दबा दिया, प्रेशर ऑफ वाटर विल इंक्रीज और डिक्रीज? इंक्रीज। जितना दबाएंगे उतनी तेजी से उठ पाएगा, राइट? जितना डायमीटर कम उतना वाटर प्रेशर ज्यादा, राइट?
अब मान लीजिए ये जो पाइप है ये हमारे बॉडी में भी है, जिसे हम बोलते हैं ब्लड वेसल, राइट? यहाँ से चांद तक की दूरी का ब्लड वेसल। तो ब्लड वेसल में पानी की जगह ब्लड है। अब अंदर कभी-कभी कुछ फूड की वजह से ब्लॉकेज हो जाती है। जब ब्लॉकेज होगी तो ब्लड का ब्लॉकेज होगा तो ये जो डायमीटर कम होगा ज्यादा होगा, तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो जब भी किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, या तो साइकोलॉजिकल फैक्टर मैंने बताया, या फिजियोलॉजिकल फैक्टर ब्लॉकेज, राइट? अब जो दवाई है, जितनी भी सारी दवाइयां ब्लड प्रेशर की, क्या वो ब्लॉकेज को हटाती है? दुनिया में ऐसी कोई दवा बनी नहीं, तो लेकिन ब्लड प्रेशर तो घटा रही है, तो इसका मतलब वो हार्ट को कमजोर कर रही है, कुछ ना कुछ और कर रही है, राइट? लेकिन हमारा ये जो ब्लॉकेज है, जब तक ये घटेगा नहीं तब तक सोल्यूशन नहीं मिलेगा, राइट? ये ब्लॉकेज इज द सोर्स ऑफ हार्ट अटैक। तो ब्लॉकेज को कैसे हटाएं? तो ब्लॉकेज को कैसे हटाएं वो आज हम कवर करेंगे। तो ब्लॉकेज को हटा देंगे तो यू बिकम हार्ट अटैक प्रूफ। कभी भी कोई डॉक्टर बोलता है कि ब्लॉकेज को कैसे हटाएं, मैं आपको बताता हूँ, वो नहीं बोलता। मैं वो बोलता है इन टर्म्स ऑफ ब्लड प्रेशर, राइट? ब्लड प्रेशर को घटा दूंगा, लेकिन ब्लड प्रेशर को घटाना और हार्ट अटैक के चांसेस को घटाना आर टू डिफरेंट थिंग्स। अब इस लेक्चर का सबसे महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ अगले 1 मिनट। इसको आप जरूर समझिए क्योंकि ये किसी की जान बचा सकता है। देखिए, मान लीजिए ये ब्लड प्रेशर की दवा है, ये जानबूझ के बड़ा है ताकि आपको दूर से दिखाए, जो दूर है ना उनको देखे, वैसे तो छोटी सी होती गोली। अब जब भी कोई पेशेंट ये दवाई खाता है, राइट, और ऊपर से पानी पीता है, राइट, पानी पी लिया, दवाई खा लिया, तो क्या होता है, इतना बड़ा दवाई यानी इतनी बड़ी गोली जब जाती है तो पेट के अंदर जाएगी। पेट में जाने के बाद सारा का सारा गोली ब्लड में नहीं घुलता है, काफी सारा इसका करीब, राइट, इतना पूरा पार्ट बॉडी डिसॉल्व करके एब्सॉर्ब डाइजेस्ट करके उसको निकाल देती है। सिर्फ छोटा सा पार्ट, 1/4 1/5वां हिस्सा ही ब्लड में घुलती है, राइट? तो इतना दवाई खाया लेकिन इतना ही ब्लड में गया, तो जो ब्लड प्रेशर उस पेशेंट का घटा वो इसकी वजह से घटा ना, बाकी तो खत्म हो गया, राइट? तो डॉक्टर अगर चाहता है कि इस पेशेंट के बॉडी में इतना दवाई जाए तो दिस इनटू 5 जितना भी दवाई होती है वो डोज, दैट इज कॉल्ड डोसेज, राइट? क्योंकि डॉक्टर को पता है कि जितना मैं दूंगा काफी सारा हिस्सा तो लिवर और स्टमक डिस्ट्रॉय कर देगी, राइट? ठीक है ना? अब एक और भी महत्वपूर्ण बात कि ऐसा होता है, तो डॉक्टर ने कैलकुलेशन बना लिया था, जनरलिस्टिक कैलकुलेशन। एक दिन वो पेशेंट क्या करता है कि मौसमी का जूस पी लेता है या ऑरेंज का जूस पी लेता है, राइट, या कोई और सिट्रस जूस पी लेता है, पाइनएप्पल का जूस पी लेता है, उसके बाद वो ये दवाई खाता है। लेकिन आज क्या होगा, उसके पेट के अंदर जब ये दवाई गई तो पेट के अंदर क्या क्या था, ऑलरेडी जूस पड़ा हुआ था। दैट जूस इस दवाई की अवेलेबिलिटी टू द ब्लड को 100% बढ़ा देगा, 100%, राइट? यानी कि आज स्टमक उसको डाइजेस्ट ना करके पूरा का पूरा ब्लड के अंदर भेज देगा। आज उसका ब्लड प्रेशर और ज्यादा घट जाएगा, अरे घटेंगे, राइट? घटेगा, तो उसका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, रिड्यूस टू मच, इट बिकम्स हाइपोटेंशन। याद रखिए, जब भी कभी हार्ट अटैक होता है 95% पेशेंट को हार्ट अटैक तब होता है जब उसका ब्लड प्रेशर कम होता है, ना कि जबकि उसका ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है, राइट? और ब्लड प्रेशर जब एक्सट्रीमली कम होने का कारण सिर्फ दवाइयां होती हैं, नेचुरली बॉडी उतना लो ब्लड प्रेशर नहीं ला सकती, राइट? तो जब भी किसी का हार्ट अटैक होगा, मोस्ट प्रोबेबली इट इज दैट मैकेनिज्म व्हिच कॉज्ड हार्ट अटैक। और ये सिर्फ एक मैकेनिज्म मैं बता रहा हूं, ऐसे कई सारे मैकेनिज्म हैं आपकी सिंपलिसिटी समझाने के लिए। तो जिस तरह से इंजीनियरिंग में क्या है कि जितना आप इनपुट देंगे, डालेंगे फनल में, उतना ही निकलेगा ना पॉलीमर, लेकिन ह्यूमन बॉडी में ऐसा नहीं है। जितनी आपने दवाई खाई उसमें से कितना बॉडी ब्लड में घुलेगा, कितना एक्सक्रीट होगा, वो कैलकुलेशन कोई नहीं जानता, डॉक्टर भी नहीं जानता, क्योंकि डॉक्टर को ये नहीं पता है कि इस आदमी के पेट में कितने बजे क्या पड़ने वाला है। मान लीजिए मैं छोटा सा एग्जांपल देकर आपको समझाता हूँ कि किस तरह से हमारा बॉडी बिहेव करता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरे पास 2 कंटेनर है। इमेजिन कीजिए कि इसमें पानी है और उसमें केरोसिन है। अब मैं चिंगारी लिया, एक चिंगारी इसमें डाला, एक चिंगारी इसमें डाला, राइट? दोनों में ऑपोजिट रिएक्शन होगा ना, चिंगारी तो सेम ही है,
डिपेंड्स ऑन कि इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, राइट। ठीक उसी तरह से आप जब दवाई लेंगे, फॉर दैट मैटर कोई भी जब दवाई खाएगा, वो दवाई उस दिन उसके बॉडी में कैसा बिहेव करने वाला है, वो दवाई पे निर्भर नहीं, चिंगारी पे निर्भर नहीं है, वो एक चीज और पे निर्भर है। उस वक्त उसके स्टमक के अंदर क्या पड़ा हुआ है, और उस वक्त क्या पड़ा है, कभी दूध पड़ा हुआ है। दूध बॉडी का जो रिएक्शन है वो अलग ढंग से करता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, और सिट्रस जूस उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना है, आप क्या कीजिए, एक दिन आप सिट्रस फ्रूट का एक ग्लास जूस पी लीजिए, एक ग्लास जूस, राइट, क्लियर, और उसके बाद एक ग्लास दूध पी लीजिए। बुरी तरह से प्रॉब्लम होगी, बुरी तरह से, किसी तरह भी हो सकती है, तो मत कीजिए एक्सपेरिमेंट। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, अपने आप में सिट्रस फ्रूट जूस कोई पॉइजन नहीं है, अपने आप में दूध कोई पॉइजन नहीं है, दोनों चीजें आप लेते हैं। लेकिन कई बार कुछ लोगों के लिए दोनों चीज मिला के पॉइजन बन सकता है, राइट। तो बिफोर वी डिस्कस फूड एज मेडिसिन, फूड एज पॉइजन, और पॉइजन तब ज्यादा बनेगा जब उसमें इस तरह की दवाइयां भी शामिल हों। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो दवाइयां जब देते हैं, कोई भी लेता है, तो दवाई कोई साइंटिफिक चीज नहीं है, क्योंकि जब दवाई ले रहा है तो वो बॉडी में कैसे अंदर घुलेगा वो अनप्रेडिक्टेबल है, वो कई सारे पैरामीटर पे डिपेंड करता है, और कभी कभी वो ब्लड प्रेशर को घटा देगा, कभी वो ब्लड शुगर को घटा देगा, अनयूजुअली एक होमियोस्टेसिस से नीचे जब घटा देगा, एक मिनिमम थ्रेशोल्ड से नीचे जब घटा देगा, तो आपका बॉडी कोलैप्स कर जाएगा, चाहे वो आप कितने भी हेल्दी क्यों ना हो। तो मैं हमेशा हमारे जितने पेशेंट्स हैं, कहीं भी देश में है, विदेश में है, उनको यही बोलता हूँ कि आप अपनी दवाई से पीछे छुड़ाएं, वो कितनी भी बड़ी दवाई क्यों ना हो, आप कितने भी सालों के पेशेंट क्यों ना हो, कुछ दिनों के अंदर आप दवाई से पीछे छुड़ा सकते हैं। कैसे छुड़ा सकते हैं? बाय यूजिंग फूड एज मेडिसिन। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि फूड, पहली बात तो मैंने ये बताया कि मेडिसिन से पीछे छुड़ाना क्यों आवश्यक है, बिकॉज इट इज अनप्रेडिक्टेबल साइंस, राइट। अगर तो आप रोज मेडिसिन ले रहे हैं तो रोज भी खाना सेम ही है, एक भी दिन कुछ और खा लेंगे तो आपका बॉडी कैसे रिएक्ट करेगा वो सिर्फ भगवान ही जानता है, और आप तब जानेंगे तो भगवान से पूछेंगे वहां जाके, नहीं तो नहीं जानता। तो दवाई लेना एक इररिस्पांसिबल बात है, क्योंकि दवाई की आपकी डोज जब डॉक्टर ने तय की तो उसने एजम्पशन के साथ तय की कि ये रोज 2 रोटी खाता होगा, फिर शाम को खिचड़ी खाता होगा, ये उसका फॉर्मेट नहीं था, लेकिन वो नहीं भी हो सकता, राइट। जैसे कि जिस दिन फास्टिंग में एग्जांपल दे रहा हूं, जिस दिन आपकी फास्टिंग होती है उस दिन भी अगर डायबिटीज की दवा ले लेंगे, क्योंकि लोग लेते ही हैं, तो ब्लड शुगर एकदम डाउन हो जाता है। लो ब्लड शुगर ज्यादा डैमेज करता है हाई ब्लड शुगर से। हाई ब्लड शुगर तो कई महीने तक होगा तो डैमेज करेगा, लो ब्लड शुगर एक दिन के अंदर कोमा में ले जा सकते हैं, कोमा मतलब डेथ सेंटेंस एक स्टेज पहले, राइट। तो मैं यहाँ पे ये बोलना चाह रहा हूँ कि मेडिसिन एज मेडिसिन लेंगे तो मेडिसिन इज लाइक ए पॉइजन, ट्रूली अ पॉइजन। तो क्या करना होगा, क्योंकि हम इंसान हैं, जैसे मशीनें हैं, आप देखते हैं मशीनें कभी ऐसा होता है कि मशीन खराब ही ना हो, अगर काम करेगी मशीन खराब होगी, लेकिन अगर आप अच्छी इंजीनियर उसको ठीक कर देंगे दोबारा काम खूब करेंगे। ठीक उसी तरह से हमारी बॉडी की एक मशीन है, वो खराब होगी यानी हम बीमार पड़ेंगे ही पड़ेंगे, लेकिन बीमार पड़ेंगे तो कैसे उसको ठीक करेंगे? बाय यूजिंग फूड एज मेडिसिन। बीमारी कोई भी हो सकता है, वो कोई फ्लू हो सकता है, वो कोई लूज मोशन या उल्टी या फिर लाइफस्टाइल इलनेस जिनकी बात अभी कर रहे हैं, ये सब हो सकता है। तो उसमें हम क्या करें? किसी को 20 साल से हो सकता है, हो गया, तो उसके लिए शॉर्टकट में क्या करें वो मैं आपको बताना अभी शुरू कर रहा हूँ। उसके लिए बस ये स्लाइड पे आप ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पे फूड और ड्रग में फर्क क्या है इतना समझना होगा। जो फूड है, फूड गेट्स, जो फूड है, फूड का डेफिनेशन क्या है? इट गेट डाइजेस्टेड, और जो ड्रग है इट गेट एब्सॉर्ब्ड, राइट। एब्सॉर्प्शन, डाइजेशन, राइट। अगर आप केला खाएंगे तो क्या होगा? डाइजेस्ट होगा, राइट, क्योंकि उसमें फाइबर वगैरह है, काफी सारी चीजें और भी हैं। और अगर आप बिस्किट खाएंगे तो बिस्किट रिफाइंड फूड में आता है, पार्शली डाइजेस्टेड, पार्शली एब्सॉर्ब्ड। तो बिस्किट भी एक तरह से पार्शल ड्रग ही है, इट इज ऑल्सो अ पार्शल ड्रग, राइट। तो यानी कि यू टू ईट फूड, फूड से क्या है?
बॉडी ये देखता है, मान लो एक फूड है, उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट हैं, वो कितने सारे न्यूट्रिएंट हैं, जिसकी क्या क्वांटिटी है उसमें हम नहीं जाएंगे, हालांकि थोड़ा आगे मैं थोड़ा हिंट दूंगा आपको, लेकिन वो जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो हमारे बॉडी में दो ब्रेन है, एक ब्रेन यहाँ पे है, एक है सेकंड ब्रेन स्टमक, और उसका साइज है करीब 1.5 किलो, और वो है मेड आउट ऑफ 500 डिफरेंट काइंड ऑफ बैक्टीरिया। वो बैक्टीरिया डिसाइड करती है कौन सा फूड किस रेशियो में, कौन सा न्यूट्रिशन को डाइजेस्ट करके, कौन से को एब्जॉर्ब करके कैसे ब्लड में भेजना है, वो हमारा काम नहीं, वो बैक्टीरिया का। उसमें मैं थोड़ा आगे आता हूँ। तो अब यहाँ तक जहाँ तक पहुंचे हैं, तो यहाँ पे हमने क्या सीखा वो मैं आपको बता रहा हूँ। पहला कंक्लूजन, रिफाइंड फूड में बी कॉल्ड एज पार्शियल ड्रग। बिस्किट है, ब्रेड है, नमकीन है, कोई भी चीज पैकिंग में है, डब्बे में है, उसे डब्बे में रहने दीजिए, उसे निकालिए मत, खोलिए। दूसरा, जब कोई भी इंसान दवा लेता रहता है लगातार, तो कई बार उसको हार्ट अटैक आ सकता है, कई बार उसको ब्रेन स्ट्रोक आ सकता है। ब्रेन स्ट्रोक एंड हार्ट अटैक किसी दवाई के अभाव की वजह से नहीं होता, बल्कि दवाई ओवर लेते रहने से होता है। दैट इज हाउ इट इज। अब ये जो दवाई की दुनिया है, मेडिसिन की दुनिया है, ये शुरू कैसे हुई और इसमें हमें क्या सीखना है, और आज अगले 20-25 मिनट बाद जब उठ के जाएंगे तो आपको क्या करना है। ये एक ही एग्जांपल काफी हो गए सारे सवालों के जवाब देने के लिए। अब देखिए, ओमेगा 3 फैटी एसिड, मैं यूं ही एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आप में से बहुत लोग हैं जो इस तरह के टॉनिक, कैप्सूल्स, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स लेते होंगे कि चलो हमारी सेहत अच्छी हो, ऐसा बोला है, ऐसा एडवर्टाइजमेंट में आया है। अब जब आप फॉर एग्जांपल ये वाली टैबलेट लेंगे तो ब्लड शुगर भी घटेगा, ट्राइग्लिसराइड भी घटेगा, कोलेस्ट्रॉल भी घटेगा, इस तरह से बहुत सारे नए नए टर्म्स होंगे जो बोलेंगे ये सब चीज घटता है, तो घटना अच्छा होता है तो आप ले लीजिए। इस तरह की जो स्टडीज हैं इसे बोलते हैं केमिकल एनालिसिस। केमिकल एनालिसिस दो तरह की स्टडी होती है। केमिकल एनालिसिस कि केमिकली हमारे बॉडी में क्या हो रहा है शॉर्ट टर्म में, 2-4 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में। दूसरा होता है ऑब्जर्वेशनल स्टडी। ऑब्जर्वेशनल स्टडी क्या होता है कि कोई इंसान अगर ये सालों साल तक ये लेता रहा तो उसकी बॉडी में बाहर से क्या फर्क पड़ेगा, उसकी लाइफ बढ़ेगी क्या या घटेगी क्या, हेल्थ अच्छी होगी या खराब होगी। तो ऑब्जर्वेशनल स्टडी में देखा गया है कि ये वाली दवाई जब कोई लेता है और वो लेता रहता है काफी समय तक, और ऐसे लोगों को जब 15 साल तक देखा गया और ऐसे करीब 2 लाख लोगों को देखा गया, तो ये पाया गया कि जो लोग ये दवाई ये लेते हैं उनमें ज्यादा मॉर्टिलिटी देखी गई, उनमें ज्यादा डिजीज, हार्ट डिजीज, ज्यादा कैंसर उनमें पाया गया। तो कोई जो दवाई की कंपनी जब मार्केट करती है, जैसे आपने वैक्सीन में देखा, वो ये देखती है कि आपने दिया किसी को 2 महीने में क्या फर्क पड़ा, लेकिन आपको 2 महीने तक जिंदा रहना है, 30 साल 30 साल 40 साल तक जिंदा रहना। वो ये नहीं देखेगी कि ये दवाई मैंने इनको दी तो 2 साल बाद क्या हुआ, जो दवाई 2 साल पहले, 10 साल बाद क्या हुआ, जो दवाई 10 साल पहले। दैट इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशनल स्टडी। आप अगर बिजनेसमैन हैं तो आपके, और ये दवाई आपने खुद बनाई है, तो आप 2 महीना वेट करेंगे या 20 साल वेट करेंगे? आप बोलेंगे 2 महीना दे दिया ना बस हो गया। तो अभी आप देख रहे हैं सिनेरियो जो आज से पहले इतिहास में शायद कभी नहीं हुआ कि एक वैक्सीन आया, 2-3 महीने ट्रायल किया, देखो 2-3 महीने ट्रायल हो गया ना, चला सकते। लेकिन एक वैक्सीन, मैं वैक्सीन का एग्जांपल इसलिए ले रहा हूं क्योंकि करंट वाला एपिसोड है, ये आपके बॉडी में आज आपने लगाया तो 1 साल बाद क्या होगा, 2 साल बाद क्या होगा, 3 साल बाद क्या होगा, 5 साल बाद क्या होगा, वो आपको नहीं पता, राइट। और वो क्या होगा नहीं पता, तो यानी कि कुछ खराब हो सकता है। वो कैसे पता खराब हो सकता है, क्योंकि इससे पहले भी हजारों तरह के वैक्सीन आए हैं और ये देखा गया कि 5 साल बाद उसका असर होता है। फॉर एग्जाम्पल इनफर्टिलिटी, फॉर एग्जाम्पल मंदबुद्धि हो जाना, फॉर एग्जाम्पल इम्पोर्टेंसी हो जाना, या फिर फॉर एग्जाम्पल पैरालिसिस हो जाना। इमीडिएट नहीं होगा, कुछ लोगों को इमीडिएट भी हो सकता है, कुछ लोगों को 1 साल बाद हो सकता है, कुछ लोगों को 2 साल बाद हो सकता है। तो 2 साल, दैट्स कॉल्ड ऑब्जर्वेशनल स्टडीज। तो ज्यादातर दवाइयां जो मार्केट में आती हैं वो केमिकल एनालिसिस के बेसिस पे आती है, क्योंकि शॉर्ट टर्म स्टडी। और जो चीजें जरूरत है आपको वो केमिकल एनालिसिस की जरूरत नहीं है, आपको किसी की जरूरत है ऑब्जर्वेशनल स्टडीज। ऐसे लोगों को अगर ऑब्जर्व करें और लंबे समय तक ऑब्जर्व करें तो क्या होगा।
मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको देख के हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं। मान लीजिए ये डायबिटीज के पेशेंट हैं 500 और ये भी डायबिटीज के पेशेंट हैं, सबका ब्लड शुगर 300 ऊपर है। इनको दवाई दी गई, इनका ब्लड शुगर 200 से नीचे आ गया सबका, इनको दवाई नहीं दी, ब्लड शुगर बढ़ा, राइट। अब इनको जब फॉलो किया गया 3 साल तो देखा जिनको दवाई दी गई इनका मृत्यु दर 22% ज्यादा इन कंपैरिजन में जिनको दवाई नहीं दी गई। तो दवाई से ब्लड शुगर तो घटता है बट उसके डेथ रेट बढ़ जाता है। तो आपका गोल क्या है? कोई आंकड़े को घटाना बढ़ाना या अपनी लाइफ स्पैन को बढ़ाना? लाइफ स्पैन। तो आप देखेंगे आजकल के मॉडर्न हेल्थ में कभी भी डॉक्टर लाइफ स्पैन के कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं करेगा। आप कितना हेल्दी फील कर रहे हैं उस कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं करेगा। वो ये बात करेगा आपका ब्लड प्रेशर का नंबर क्या है, आपका ब्लड ग्लूकोज का नंबर क्या है, आपका कोलेस्ट्रॉल का आंकड़ा क्या है, राइट। वो ये नहीं पूछेगा कि आपकी एनर्जी लेवल क्या है, राइट। आपको सिर में दर्द है वो कम हुआ कि नहीं हुआ। तो ये समझना होगा, ये समझना इसलिए होगा क्योंकि आज की तारीख में एक ही तरीका है, आपको भी अपना डॉक्टर बनना ही पड़ेगा। तो ऑप्शन इसलिए नहीं है क्योंकि अगर आप हेल्थ केयर में जाएंगे तो वो आंकड़ों में बात करेंगे, नंबर्स में बात करेंगे, और नंबर्स में बात करेंगे तो आप नंबर्स को चेस करेंगे, राइट। नंबर्स को चेस करेंगे तो वही होगा जो इस वाले ग्रुप का हुआ था, जिन्होंने अपना नंबर ब्लड शुगर नंबर तो नीचे ले आए लेकिन बढ़ गया, राइट। ये जो एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, इसके साइंटिफिक बेसिस के जो बुक्स हैं, लिंक्स हैं, आखिर में मैं दे दूंगा। तो आपको ये पूछना होगा कि मेरी लाइफ स्पैन लंबी होगी क्या, मेरी एनर्जी लेवल बढ़ेगी क्या, मेरा हेल्थ अच्छा होगा क्या, रादर देन आस्किंग कि मेरा ब्लड शुगर घटेगा क्या, मेरा ब्लड प्रेशर घटेगा क्या। ये जो आंकड़े, ये आंकड़े बहुत ज्यादा मिसलीडिंग है। दैट इज द मोस्ट मिसलीडिंग थिंग इन द वर्ल्ड। अभी तो सर अभी बात कर रहे थे हम लोग 1978 की अगर आप मेडिकल की बुक्स निकाले के देखेंगे वहां पे 250 mg पर डेसिमल, 250 से नीचे अगर ब्लड शुगर हो रहता है तो उसको नॉर्मल मानते हैं। फिर 20 साल के अंदर 200 हो गया, फिर उसको 150 कर दिया। अभी आप बता रहे थे कि अगर 100 120 से ऊपर हुआ तब भी उसको हाई करके ब्लड शुगर कर देते हैं। तो धीरे धीरे क्या है कि आंकड़ों को स्क्वीज करना शुरू कर दिया, और जैसे जैसे आंकड़े को स्क्वीज होंगे वैसे क्या होगा, नंबर ऑफ हेल्दी पीपल हु गेट कन्वर्टेड ऑटोमेटिकली इनटू अ पेशेंट वो बढ़ेगा। तो इस बात को समझना होगा क्योंकि आपको जिंदा रहना, दिस यू हैव टू रियली अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दूंगा और फिर सॉल्यूशन की तरफ बढ़ूंगा। आई टेक वन मोर एग्जांपल एंड देन वी गो टू सॉल्यूशन करना क्या है। देखिए ये सब कुछ शुरू हुआ, आप यहाँ पे ध्यान देखिए 1922 साइंस, ये दुनिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट जर्नल, और उसका जो एक आर्टिकल था 1922 का, इससे दवाई आज जिस भी स्टेट में है, मेडिसिन की दुनिया जैसा भी आप देखते हैं वैसा होने के पीछे का जो बिगनिंग है वो यहाँ से हुई। इस आर्टिकल में जब पढ़ेंगे उसमें ये पाया गया कि विटामिन ई डिस्कवर्ड इन लीफी ग्रीन वेजिटेबल आर विद अ मेजर हार्ट बेनिफिट, हेल्थ बेनिफिट, कि अगर विटामिन ई किसी के बॉडी में ज्यादा है तो उसकी हेल्थ ज्यादा अच्छी हो जाती है, ऐसे ही, राइट। तो जो विटामिन ई जो कि ग्रीन लीफ में होता है और वो जिनके बॉडी में ज्यादा होता है उनकी हेल्थ बेनिफिट अच्छी होती है, तो ये पाया। तो उसके बाद ये देखा गया कि जिन जिन के बॉडी में विटामिन ई ज्यादा मिला उनके ब्लड में, उनका हार्ट डिजीज उन लोगों में कम पाया गया, ठीक है। अब एज ए मैनेजमेंट स्टूडेंट, मार्केटिंग स्टूडेंट, इंजीनियरिंग स्टूडेंट, आप ज्यादा समझ पाएंगे इस बात को कि विटामिन ई ज्यादा जिनके बॉडी में मिला उन लोगों में हार्ट डिजीज कम पाया गया। क्या इसका मतलब ये भी हम मान लें कि जो हार्ट डिजीज वाले पेशेंट हैं उनके ब्लड में अगर विटामिन ई घोल दें तो हार्ट डिजीज गायब हो जाएगी, ऐसे भी तो हो सकता है, राइट। अच्छा, इसको मैं लेमन भाषा में समझाता हूँ। ये देखा गया जिनकी उम्र ज्यादा है उनमें ज्यादा सफेद बाल पाए गए, जिनकी उम्र कम है उनमें कम सफेद बाल पाए गए, जिनकी उम्र ज्यादा है उनमें ज्यादा सफेद बाल। क्या इसका ये मतलब है कि सफेद बाल वाले लोगों को काला बाल करके तो वो जवान हो जाएंगे या हो जाएंगे? नहीं ना, राइट। लेकिन मेडिकल साइंस में यही है कि ये देखा गया कि जिन लोगों के बॉडी ब्लड में ज्यादा, हार्ट डिजीज कम है, तो हार्ट डिजीज के पेशेंट को बोला भाई अपना
दिया कि जितने लोगों के सफेद बाल काले कर दो तो वो जवान होने में वो भी तो लॉजिक होना चाहिए। तो जो कोऑर्डिनेशन है, कोऑर्डिनेशन जरूरी नहीं कि रिवर्स में भी काम करे, ये एक चीज को आपको समझना होगा, राइट। और इसको समझा गया जब ये एग्जांपल आया तो 1993 के आसपास ही आप अगर याद करें, उससे पहले जो लोग पैदा हुए हैं कि मिनरल टैबलेट, विटामिन कैप्सूल्स की मार्केट में एकदम से बाढ़ आई। ये वाला उदाहरण देखा, राइट, कि भाई आप सब में विटामिन ई कम है, जो है विटामिन बी कम है, वो आप भर लो तो आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, क्योंकि जिनके अंदर ये होता है आपकी हेल्थ अच्छी होती है। तो लेकिन उसके बाद कुछ ऑब्जर्वेशनल स्टडी जो होते रहे साथ साथ, ऑब्जर्वेशनल स्टडी का मतलब क्लियर हो गया ना, वो साथ साथ चलते रहे अलग से, जो दवाई के कंपनियों के बावजूद भी वो अलग से चलते रहे, इंडिपेंडेंट चलते रहे। आप जैसे संस्थान में इंजीनियरिंग कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटीज में, तो उन्होंने ये देखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, विटामिन ई सप्लीमेंट लीड्स टू इंक्रीज हार्ट डिजीज, राइट। अगर आप सप्लीमेंट के फॉर्म में लेंगे तो वो हार्ट डिजीज उतना बढ़ा देगा। तो ये आखिरी चीज मैं बता रहा हूं जो आपको समझना है कि विटामिन ई या फॉर दैट मैटर विटामिन डी या कोई भी विटामिन, राइट, कोई भी विटामिन, कोई भी मिनरल आपके बॉडी को ना अच्छा कर सकता है ना खराब कर सकता है, ये डिपेंड करता है कि वो किस फॉर्म में ले रहे हैं। विटामिन ई फ्रॉम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इट विल क्योर योर हार्ट डिजीज, विटामिन ई फ्रॉम सप्लीमेंट इट विल क्रिएट हार्ट डिजीज, राइट। क्योंकि जब सप्लीमेंट होता है वो ड्रग है। ड्रग क्या होता है? डाइजेस्ट या ऑब्जर्व, राइट। और जो वही वाला विटामिन ई रॉ फॉर्म है वो क्या होगा? वो डाइजेस्ट। तो दैट इज द डिफरेंस, यही डिफरेंस है। इस डिफरेंस को हमें समझना होगा कि जब भी वही वाला मिनरल, वही वाला विटामिन अगर वो ड्रग का रूप ले लेता है, टॉनिक का रूप ले लेता है, टैबलेट का रूप ले लेता है, पाउडर का रूप ले लेता है, it will start, body will absorb. So the moment the body absorbs it, तो body में उसका effect ठीक उल्टा हो जाएगा। वही वाला विटामिन ई जब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से आ रहा था तो जो बीमारियां वो ठीक कर रहा था, वही वाली बीमारियां वो पैदा करेगा। ये बात हमें समझना है। कई बार पेशेंट आते हैं, बच्चे भी आते हैं, आप जैसे बोलते हैं कि डॉक्टर मैं तो इतने सारे विटामिन की गोलियां भी ले रहा हूँ, फिर मैं क्यों नहीं हेल्दी? अरे बाबा, क्योंकि आप गोलियां ले रहे हैं इसलिए आप हेल्दी नहीं हो। तो ये चीजें हमें बहुत ही क्लियरली अंडरस्टैंड करनी होगी। और ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैं स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूँ, ये सारे उन्हीं के पेपर्स हैं, राइट, अलग अलग रिसर्च पेपर्स हैं, लेकिन ये सारे रिसर्च पेपर बड़े बोरिंग हैं। इसको मैं एक ही एग्जाम्पल से समाप्त करूंगा। फॉर एग्जाम्पल एप्पल, आप अगर एक सेब के अंदर देखेंगे तो एक सेब के अंदर ये सारे आपके सामने जो दिख रहे हैं, ये सारे न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिएंट्स, राइट। ये कम से कम 50 तरह के न्यूट्रिशन पैकेज में। जब आप एक सेब खाते हैं उसमें आप वो सारे न्यूट्रिएंट खाते हैं, राइट। उसमें विटामिन ई भी होगा, राइट, विटामिन के भी होगा, सारे तरह के विटामिन होंगे, सारे तरह के न्यूट्रिएंट होंगे हैं उसके अंदर। अब एक सवाल आता है कि अगर विटामिन ई इस सेब के अंदर है तो काम कर रहा है, तो सेब से बाहर निकाल दूं और फिर मैं खा लूं अलग से टैबलेट, तो काम क्यों नहीं करेगा? कई बार लोग ये समझना ही नहीं चाहते, समझ ही नहीं पाते। तो मैं एक एग्जांपल देकर बताता हूँ कि ये सारे न्यूट्रिएंट हमारे बॉडी में तभी काम कर सकते हैं जब ये एक पैकेज में हो, एक ऐसा पैकेज जो कुदरत ने दिया है। वो क्यों? इसको समझने के लिए एक उदाहरण लीजिए, इंजीनियरिंग का उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कार है, इस कार को आगे ले जाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण पुर्जा कौन सा है? इंजन, राइट। आपने बोला इंजन फॉर एग्जांपल, तो इसके अलावा टायर, पहिए बोला या इंजन बोला, दोनों में से कोई एक बोला। मैं इंजन ले लेता हूं कि ये जो कार है, ये कार इंजन की वजह से आगे जाता है, ठीक है। तो मैं इंजन को निकालूं कार से, अच्छा इंजन की वजह से ही जाता है, इंजन रुक के इंजन के ऊपर बैठ गए तो आगे ले जाएगा आपको? ये इंजन तभी अपना काम करेगा जब उस कार का पार्ट बनेगा, क्लियर है ना? ठीक उसी तरह से ये जो इंजन है विटामिन
हाथ है तभी वो आपको आगे ले जाएगा गाड़ी का, पर ये अपने आप में नहीं ले जाएगा। मॉडर्न मेडिसिन क्या करता है, ये देखता है कि इसने क्या फायदा कराया और ये अज्यूम करता है कि मैं अलग ले लूं और फिर इंसान को दे दूं और सेम फायदा होना चाहिए। लेकिन मॉडर्न मेडिसिन चलाने क्या करता है, ऑब्जर्वेशन स्टडी नहीं करता है, सिर्फ 2-3 महीने की स्टडी करता है और आंकड़ों की स्टडी करता है एंड दैट बिकम द बेसिस। जैसे अभी वैक्सीन में हो रहा है कि भाई क्या एंटीबॉडी बन गए, भाई एंटीबॉडी बन गए उसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है, क्या ये प्रूव, क्या वैक्सीन लेने के बाद मैं बीमार नहीं पड़ूंगा दोबारा से? अगर तो आंसर है नहीं पड़ेंगे तब तो फायदेमंद, लेकिन ऐसा तो आंसर नहीं है। वो वैक्सीन लेने से आपकी एंटीबॉडी बन जाएगी, लेकिन एंटीबॉडी से क्या मतलब, मुझे बीमार नहीं पड़ना, एंटीबॉडी बनेगा बनना, राइट? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो जो मॉडर्न मेडिसिन है दे टॉक इन टर्म्स ऑफ सम, कोई आंकड़े के टर्म्स से बात है, और हमें आंकड़े से कोई लेना देना नहीं, हमें हेल्थ से लेना देना है, हेल्थ आंकड़ा नहीं है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब हमें करना क्या होगा, एक आखिरी बात यहां से समझ लीजिए, आप दुकान से 2 सेब लाइए, दोनों सेब एक ही पेड़ पे और एक ही पेड़ में एक ही साथ निकाला, दोनों का साइज भी सेम है। अगर दोनों का केमिकल एनालिसिस के लिए देंगे, आप देखिए कभी आप पाएंगे एक में जितना पोटेशियम है दूसरे में उसका 20 गुना ज्यादा पोटेशियम भी हो सकता है, एक में जितना फास्फोरस है उसमें से दूसरे में उससे 20 गुना ज्यादा फास्फोरस भी हो सकता है, किसी में जितना कैल्शियम है दूसरे में उससे 20 गुना ज्यादा भी हो सकता है। तो एक फल जब आप खाते हैं तो कितना कैल्शियम मिलने वाला है, कितना फास्फोरस मिलने वाला है, कितना विटामिन ई मिलने वाला है, हाईली अनप्रेडिक्टेबल। जब भी कोई बोले कि एक सेब खाओगे तो इतना ही और मिनरल मिल जाएगा, वो एक इमेजिनरी थिंग है। एक ही पेड़ के एक ही डाल के 2 फल एक ही साइज के लेंगे तब भी उसमें वेरिएशंस ऑफ मिनरल्स एंड विटामिन वो 20 के बराबर हो सकता है, 20 टाइम्स। ठीक इसके उल्टा आप जब कुछ भी खाते हैं, when you eat anything, वो पेट में जाके कितना डाइजेस्ट होगा और कितना एब्जॉर्ब होगा और उसका कितना ट्रांसपोर्ट होगा अलग अलग बॉडी पार्ट पे, और ऑर्गन में कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा, फिर कितना स्टोर होगा, कितना एक्सक्रीट होगा, ये सारी चीजें डिसाइड करती है आपके बॉडी का सेकंड ब्रेन। सेकंड ब्रेन कौन है? ये स्टमक, राइट? वो स्टमक सेकंड ब्रेन है, वो डिसाइड करता है डिपेंडिंग ऑन आपकी जरूरत क्या है, राइट? तो वो जो सेकंड ब्रेन है दैट इज बैक्टीरिया, 1.5 kg, 1.5 किलो का, राइट? वो ना 2.5 किलो क्या हाथ, 2.5 किलो का हाथ होना हो, लेकिन सेकंड ब्रेन 1 किलो का। तो एक बार चीफ एडिटर ऑफ ब्रिटिश मेडिकल जर्नल दुनिया का सबसे बड़ा जर्नल का समूह है, उनका जो चीफ एडिटर 25 साल से चीफ एडिटर रहे, उनसे कुछ साल पहले मेरी मुलाकात हुई। मैंने उनसे एक सवाल पूछा कि मेडिकल वर्ल्ड में बीपी की गोली देते हैं, ब्लड शुगर की गोली देते हैं, इवन जुकाम की गोली देते हैं, क्या जुकाम की कोई गोली होती है? क्या दुनिया में कोई ऐसी दवा है जो जुकाम को ठीक कर सकता है? आंसर इज नो। दुनिया में ऐसी कोई दवा है जो कैंसर को ठीक कर सकता है? आंसर इज नो। तो कॉमन कोल्ड से कैंसर तक के लिए जो दवाई है वो ठीक नहीं कर सकती, कभी ठीक वर्ड यूज ही नहीं करेगी, क्यों? इट विल यूज द वर्ड कंट्रोल। तो ये टिप्पणी है, हमें कंट्रोल नहीं करना, हमें ठीक करना है। कंट्रोल के नाम पे वो प्रोग्रेस करती है। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई जब वो ठीक नहीं कर सकती है तो ये फल फूल रहा है इतनी दवाइयों की दुकान, इसके पीछे का कारण क्या है? तो उन्होंने जो बोला वो मैं वो यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं वैसे ही पढ़ के सुनाता हूँ। मेडिकल जर्नल एंजॉय ह्यूज प्रॉफिट मार्जिन ऑन रीप्रिंट समटाइम बाय 80%। होता क्या है, मैंने आपको 2 तरह की स्टडीज के बारे में बताया, एक तो होता है केमिकल एनालिसिस, दूसरा क्या ऑब्जर्वेशनल स्टडीज। दोनों तरह के लोग, लेकिन जो केमिकल एनालिसिस है और ऑब्जर्वेशनल स्टडीज में से जो बिजनेसमैन है जिसने वो दवाई बनाई उसके लिए कौन सा वाला ज्यादा अच्छा? तो वो क्या करेगा, केमिकल एनालिसिस वाली जो स्टडी है उसको उसकी रिप्रिंट कॉपी कई बार खुद ही अपने पैसे से छपवा देगा। तो आपके लिए ज्यादा अवेलेबल होगा जब आप लाइब्रेरी देखने में जाएंगे, कौन से वाले पेपर ज्यादा अवेलेबल होंगे? केमिकल एनालिसिस वाले। तो जब भी आप कुछ ढूंढेंगे तो केमिकल एनालिसिस वाले पेपर ज्यादा देखेंगे, तो क्योंकि वो ज्यादा दिखेंगे तो वही आपको ज्यादा इन्फ्लुएंस करेंगे, वही आपके लिए अल्टीमेट ट्रूथ है, राइट? सो ये एक चीजें समझाना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर हमें लगता है कि हर जगह सब कुछ है, इतने बड़े हॉस्पिटल, इतनी सारी पढ़ाई है,
ये जो बोल रहे हैं सब जो कर रहे हैं ये ठीक ही होगा, राइट। तो इसके पीछे का जो एक सत्य है वो बताना जरूरी है। अब आते हैं आखिरी 5 पॉइंट में हमें करना क्या होगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं। आज आपने इतना समय लगाया तो एक टेस्ट करके देखते हैं, आप घर जाके करेंगे। आप ढूंढिए अपने घर में कोई एक इंसान जो डायबिटीज की दवा लेता हो, कोई एक इंसान जो ब्लड प्रेशर की दवा लेता हो, कोई एक इंसान जो जिसको जो ज्यादा मोटा हो, या कोई एक इंसान जिसको कॉन्स्टिपेशन हो, कोई एक इंसान जिसको किडनी फेलियर की प्रॉब्लम हो, डायलिसिस पे हो, कोई एक इंसान जिसको कैंसर हो, कोई भी हो, आप ढूंढिए। और क्या करना है वो मैं आपको बताता हूं ताकि आप कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें और एक अच्छा आउटकम ला सकें। तो इसके लिए एक छोटा सा पिक्चर आप देखिए यहाँ पे। ये देख रहे हैं एक टापू है, ये आइलैंड है बहुत छोटा, भारत में है। इसे अंडमान निकोबार में बहुत सारे आइलैंड है, उनमें से एक आइलैंड है। लेकिन यहाँ पे जाना बैन है, अभी आप जा नहीं सकते वो बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉ, क्योंकि यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो ऐसे हैं आज भी, इन्हें बोलते हैं जारावास। और इनके पास तीर है और कपड़े भी नहीं पहनते हैं, इस तरह के वेशभूषा में रहते हैं। और कोई उनके आसपास जाएगा तो तीर से वो मार देते हैं, मारते भी रहे हैं। दे आर नॉट फ्रेंडली, दे डोंट नो टू मिक्स विद द मॉडर्न वर्ल्ड। वो आग भी जलाना जानते नहीं है, आग भी जलाना नहीं जानते। आदि मानव आपने पढ़ा, हमने सबने पढ़ा, आदि मानव लोग कैसे रहते होंगे। तो वो आज की दुनिया के जो एग्जैक्ट आदि मानव है, जो 50,000 साल पहले मॉडर्न वर्ल्ड से डिसोसिएट होकर टापू में रह गए थे, मॉडर्न वर्ल्ड के टच में आए हैं 50,000 साल से पहले, तब से कभी तक टच में नहीं आए। तो जितनी सारी आविष्कार हुए पूरी दुनिया में, वो सारे आविष्कार उन तक नहीं पहुंचे, राइट। और कोई भी अगर जाता है तो वो मार देते हैं तीर से, तो बदले में हम भी गोली चलाएंगे तो ये जो ट्राइब खत्म नहीं हो जाएगी, बट दे आर नॉट फ्रेंडली। तो इसलिए यहाँ आप जान सकते जारावास पॉपुलेशन। तो ये जो जारावास पॉपुलेशन है, एक बार मैं आज से 20 साल हो गए, 5 साल हो गए लगभग, मुझे जाने का मौका मिला, तब किसी सोर्स में वहां तक पहुंचा। और वहां पे एक डॉक्टर थे, डॉक्टर आरसी कर, जो 20 सालों से न जाने कैसे उनसे दोस्ती कर ली, जाते आते रहते थे, भाषा भी समझते। एक किताब भी लिखी उन्होंने जारावास के ऊपर। तो मेरे दिमाग में सवाल आया, मैंने इनसे पूछा डॉक्टर आरसी कर से कि सर इनको हाई ब्लड प्रेशर होता है? उन्होंने बोला नहीं होता है। मैंने फिर पूछा सर इनको डायबिटीज होती है? नहीं होती है। इनमें कभी हार्ट अटैक हुआ है? नहीं हुआ है। इनमें कभी किडनी फेलियर हुआ है? नहीं हुआ है। कोई बीमारी हुई है? तो कहा जब ये ऊपर पेड़ से गिर जाते हैं, चोट लगती है, तब कभी मर जाते हैं। कोई जंगली जानवर से लड़ लेते हैं, जख्मी होते हैं तो मर जाते हैं, लेकिन कोई बीमारी से नहीं मरते। तो बाय डेफिनेशन दे आर इंडियंस, जैसे आप इंडियंस, लेकिन इनमें बीमारियां नहीं है। तो ये एक तरह के लोग हैं जिनमें देयर इज नो डिजीज फ्री, राइट, नो डायबिटीज, नो हार्ट डिजीज। तो मैं रिसर्च कर रहा था, उसमें एक तरह के लोग जो बीमार नहीं पड़ते, और उसी समय मुझे जाने का मौका मिला कुवैत दुनिया का सबसे ज्यादा डायबिटिक कंट्री बोल सकते हैं। 21% लोग डायबिटीज पेशेंट वहां पे, भारत में वो 8% है। तो भारत से 3 गुना ज्यादा, लगभग 2-3 गुना ज्यादा लोग डायबिटीज पेशेंट। तो मेरे पास 2 तरह के पॉपुलेशन थे स्टडी करने के लिए, एक ये जिनमें कोई बीमारी नहीं है, डायबिटीज 0 है, एक वो पॉपुलेशन कुवैत जिनमें दुनिया में सबसे ज्यादा डायबिटिक पेशेंट है। सब बाय रेशियो 2 तरह, दोनों ह्यूमंस हैं, दोनों को साइड बाय साइड रखकर स्टडी करने का मुझे मौका मिला कि दोनों ही ह्यूमन है, एक सबसे ज्यादा डायबिटीज और एक 0 डायबिटीज। तो जब मैंने उनको स्टडी किया दोनों को, तो एक कारण पाया, और वो ये कि जो कुवैत की पॉपुलेशन है, उनकी जो डाइट थी वो जारावास की पॉपुलेशन की डाइट से बिल्कुल उल्टा था। तो कुवैत की पॉपुलेशन का डाइट मैंने नाम रखा था वीआईपी डाइट। वीआईपी पता आपको? वीआईपी लोग, वीआईपी वो लोग होते हैं जिनमें कोई नियम कानून नहीं चलता। ट्रैफिक लाइट पे रेड है तो रेड सिग्नल में ही वो तोड़ के निकल सकते हैं, उनमें कोई लॉ नहीं होता। अगर आप देखते हैं कि वीआईपी की गाड़ी जा रही है, लाल गाड़ी जा रही है, लाल बत्ती वाली, तो निकल के एकदम से वो वीआईपी के ऊपर कोई लॉ नहीं लगता। कुछ ऐसे फूड हैं जब हम उनको खाते हैं तो पेट में वो वीआईपी की तरह काम करते हैं, बॉडी के सारे नियमों को तोड़ के सीधे वो ब्लड में घुल जाते हैं।
DIT डाइट, बॉडी के सारे बैलेंस को बिगाड़ देता है, DIT डाइट। फिर दूसरी तरह का डाइट जो जारावास पॉपुलेशन का डाइट, मैंने उसका नाम रखा DIP, डिसिप्लिन एंड इंटेलिजेंट पीपल्स डाइट। आप और हम जैसे लोग रेड सिग्नल तो रुक जाना, ग्रीन है तो ध्यान से चलाना, दूसरे को चोट ना लगे, हमें चोट ना लगे। कुछ खाना दुनिया में ऐसा है जब हम उसको खाएंगे तो स्टमक में जाने के बाद वो रुकता है, फिर वो जो 1.5 किलो बैक्टीरिया है वो उसकी बात मानता है और फिर जिस वाले न्यूट्रिएंट की जब जितनी जिस जगह पे जरूरत है उस तरह से वो डिसिपेट करता है, जाता है। इस पर DIP का है। मैंने ये देखा है कि कोई भी हेल्दी इंसान इंक्लूडिंग मी एंड यू, अगर आप 1 महीने तक DIP डाइट में रहेंगे तो आप हेल्दी नहीं रह सकते। और कोई भी बीमार इंसान, कितने बीमार, अगर वो DIP डाइट में रहेंगे तो वो बीमार नहीं रह सकते। सिंपल सी बात। आप बीमार इंसान को पकड़िए, उसको DIP डाइट में डालिए, विद इन few days to few months he should be cured. That is the whole medical science. इससे अलावा कुछ भी नहीं है। इस बात को हम समझते हैं किस तरह से। अब एक ही बात समझना रह गया है, वो क्या कि कौन सा डाइट DIP डाइट है और कौन सा डाइट DIP डाइट है। कौन सा डाइट ऐसा है कि जिसको खाने के बाद वो बॉडी और बैक्टीरिया के नियमों को ब्रेक करके सीधे पेट में घुल जाता है और पूरा उथल-पुथल मतलब मचा देता है, हाई ब्लड शुगर, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल। और कौन सी वाली डाइट ऐसी है जो स्टमक में जाने के बाद सेकंड ब्रेक के हिसाब से धीरे धीरे बॉडी को के अंदर जाता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप, राइट। तो उसके लिए सिर्फ एक ही बात आप समझिए कि हाउ टू डिफरेंशिएट व्हिच इज DIP डाइट, व्हिच इज DIP डाइट, वेरी सिंपल। उसके लिए अगला स्लाइड में दिखा रहा हूं, ये इस पूरे लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है, बस इसी को आपको फॉलो करना है। DIP डाइट, एनिमल फूड, जो भी चीज जानवरों से निकलती है, वो अंडा हो सकता है, चिकन हो सकता है, फिश हो सकता है, डेयरी प्रोडक्ट हो सकता है, वो सारे DIP डाइट। डेयरी प्रोडक्ट, दूध, दही, लस्सी, मक्खन, घी, पनीर, छाछ, सुनने में लगता है तो बड़े ताकतवर, दूध तो बड़े चीज है, दूध अच्छी चीज है, लेकिन गाय के बछड़े के लिए गाय का दूध अच्छा है, इंसान के लिए, इंसान के बच्चे के लिए इंसान का दूध अच्छा है, गाय का दूध आपके लिए अच्छा नहीं, राइट। क्यों? देखिए भगवान ने हर जानवर के हिसाब से दूध बनाया है। आप तो इंजीनियरिंग के छात्र हैं, राइट। कई बार लोग बोलते हैं कि गाय के दूध में तो इतना न्यूट्रिशन है, तो वो तो हम खा लेंगे तो पी लेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। तो आप इंजीनियरिंग छात्र में आपको पूछता हूँ कि भाई जो ट्रक का टायर है तो बड़ा मजबूत है, तो आप मारुति कार में लगा दो, नहीं लगाओगे ना। वो ट्रक का टायर ट्रक के लिए बना है, तो ट्रक के हिसाब से मजबूती है उसकी। तो बस गाय का जो दूध है वो गाय के बछड़े के हिसाब से मजबूती है उसकी, आपके हिसाब से नहीं, राइट। तो दैट इज वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सिमिलरली ऑल अदर एनिमल फूड, मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये कोई पॉइजन है, नो दैट इज नॉट, बट व्हाट आई एम सेइंग इज व्हेन इट इज गोइंग इन द बॉडी इट वर्क्स लाइक ए VIP डाइट। इंटेस्टाइन, कोई भी चीज जो फैक्ट्री से निकल के आती है, अब दिमाग लगाइए क्या चीज फैक्ट्री से निकल के आती है, वो ब्रेड हो सकता है, पिज्जा हो सकता है, बर्गर हो सकता है, बिस्किट हो सकता है। तो मैंने आपको शुरू में बता दिया था इस तरह के फूड आर पार्शियली एब्सॉर्ब, राइट। न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स मैंने आपको आज एक्सप्लेन किया, मेडिसिन कैसे काम करता है मैंने एक्सप्लेन किया। तो ये जो चीजें हैं, इन चीजों को आपको अवॉइड करना है। अब DIP फ्रूट्स, वेजिटेबल इन रॉ स्टेट, टमाटर, खीरा, मूली, गाजर, ककड़ी उसी फॉर्म में जिस फॉर्म में भगवान ने बनाया है। नट्स एंड स्प्राउट्स, पत्ते। अगर आप मुझसे पूछते हैं कि दुनिया में सबसे पावरफुल भोजन कौन सा है, खासतौर पे आप में से बहुत लोग जो स्पोर्ट्स में है, कई छोटे आपकी तरह बच्चे आते हैं कि हमें तो जिम में बॉडी बनानी है, मसल बनाना है, तो क्या करना है। तो कोई एक चीज अगर आप मुझसे पूछते हैं कि सबसे पावरफुल दुनिया में क्या है, अगर इस लेक्चर से आप लेके जाना चाहते हैं तो एक बात आप दिमाग में रख लीजिए कि आज के बाद से या आज से ही रोज आप किसी न किसी फॉर्म में पत्ते, राइट, हरे पत्ते जैसे मूली के पत्ते, धनिया के पत्ते, पुदीने के पत्ते या फिर पालक के पत्ते, जो भी पत्ते आपको ठीक लगे, कम से कम 50 ग्राम पत्ते या तो चबा खाइए या फिर पत्तों का जूस, पालक का जूस पीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे अलॉन्ग में जो भी आप कुछ खा रहे हैं और ऐसा अगर 3 महीने तक कर सकते हैं तो आप जो लोग जिम जाते हैं, जो लोग स्पोर्ट्स में हैं, एक मेजरेबल डिफरेंस आपको दिखेगा।
स्टेमिना में, राइट? एक मेजरमेंट डिफरेंस दिखेगा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये है डीआईपी डाइट और ये है वीआईपी डाइट। अब आप जब भी कोई चीज मुंह में डालेंगे सिर्फ इतना पूछेंगे अपने आप से, इज इट ए डीआईपी डाइट? यस, आई विल ईट। एंड ऐसा कोई भी पेशेंट अगर करता है, हमने देखा है कि मेरे पेशेंट जो है अलग अलग देशों में, हमारे कैंपों में, जो भी पेशेंट डायबिटीज के होते हैं अक्सर 3 दिन लगते हैं उनको दवाई से पीछा छुड़ाने के लिए। 3 दिन के अंदर दवाई छोड़ने के बाद भी उनका ब्लड शुगर वही रहता है जितना दवाई के साथ रहता है। 3 दिन 72 आवर्स। ब्लड प्रेशर के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो 1 हफ्ते के अंदर दवाई छोड़ने के बाद भी ब्लड प्रेशर वही रहता है जहां दवाई के साथ वो मैनेज करता था। समझ लीजिए बात को, ब्लड प्रेशर के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर के लिए, स्टमक की कोई दिक्कत है, पेट में दर्द है, एसिडिटी है या कॉन्स्टिपेशन है, उन सब के लिए। जो लोग मोटे हैं अगर वो यही करेंगे तो 1 महीने में 10% वेट घटता है। एक इंपॉर्टेंट बात है, कई बार आपने देखा होगा आपके अंकल आंटी डैडी मम्मी कोई भी बोलता है छाती में दर्द होता है, चुभन होती है, इट इज कॉल्ड मेडिकल भाषा में एंजाइना। ऐसा माना जाता है एंजाइना का अगला स्टेप क्या है? हार्ट अटैक हो सकता है। अगर वो ये डाइट लेते हैं तो मैंने देखा है 1 महीना लगता है वो एंजाइना को गायब करने का, हार्ट डिजीज को गायब करने। थायराइड में 2 महीना ठीक लगता है, ठीक हो 6 से 9 महीने लगता है अस्थमा, कैंसर, आर्थराइटिस। ये सारी चीज इमेजिनरी चीज नहीं है, ये वो चीजें हैं जो हजारों पेशेंट में हमने करके देखा है और उसका जो रिजल्ट्स है वो हमने पब्लिश किया है। और वो पब्लिश जो बुक्स हैं, जर्नल्स हैं, उनके कुछ कॉपीज मैं यहाँ पे लाया हूँ, मैं लाइब्रेरी के यहाँ छोड़ के जाऊँगा, आप देख सकते हैं। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि डीआईपी डाइट से डीआईपी डाइट में आने से इतने समय लगता है चीजों को कंट्रोल करने में, नहीं ठीक करने में। तो एग्जैक्टली क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, आज घर जाएंगे तो स्टेप 1 कल से शुरू कीजिए। एक चैलेंज आपके पेरेंट्स के लिए, किसी पेशेंट के लिए, खुद के लिए। स्टेप 1 12 बजे तक जो भी चीज मुंह में जाए वो सिर्फ और सिर्फ फल, 3 से 4 तरह के फल, कोई भी 3 से 4 तरह के नहीं। अगर आप डायबिटीज पेशेंट है तो पक्का ही मीठे फल, अंगूर या फिर चीकू, आम के सीजन में आम, जितना ज्यादा मीठा उतनी जल्दी डायबिटीज गायब। आपको लग रहा है हमने सुना तो सब था। देखिए यही बड़ी गड़बड़ है जो मैं पिछले कई सालों में बोलता आया हूँ। जिस चीज से इंसान ठीक हो सकता है या ठीक हो जाता है, उन्हीं चीजों को न जाने कैसे सब मना कर दिया गया है कि भाई आम मत खाना, शुगर बढ़ जाएगा। देखिए आम है, चीकू है, अंगूर है, ये डायबिटीज के पेशेंट के लिए बहुत ही अच्छा है। उसको जब खाएंगे तो गिनना नहीं है, उसको तोड़ना नहीं है, जितने में पेट भरे कि जितने में मन भरे उतना पेट भर के खाना। कई बार जितने ज्यादा खाएंगे, जितनी ज्यादा बार खाएंगे उतनी जल्दी ठीक है। तो 12 बजे तक पेट भर के खाना, कितना खाना है? कम से कम आपका बॉडी वेट इंटू 10। मान लो मेरा बॉडी वेट 70 kg इंटू 10 700। अब इसमें ग्राम लगा लें, 700 grams ऑफ 3 to 4 kind of fruits for me, 3 से 4 तरह के फल 12 बजे तक। इसका मतलब 12 बजे तक पराठे नहीं खाने, रोटी नहीं खाना है, ब्रेड नहीं खाना है, बिस्किट नहीं खाना है, चाय नहीं पीना है, लेकिन भूखे नहीं रहना है, बल्कि ज्यादा खाना है। बट स्टेप 1। स्टेप 2, जब भी कभी आप लंच के लिए बैठेंगे, डिनर के लिए बैठेंगे, हमेशा 2 प्लेट लेके बैठेंगे, प्लेट 1 एंड प्लेट 2। प्लेट 1 में 3 से 4 तरह की कच्ची सब्जी ले लीजिए, टमाटर, खीरा, मूली, गाजर, ककड़ी, मटर, सलाद, पत्ता, लाल पीली हरी शिमला मिर्च, प्याज, राइट। एक आप स्टीम वेजिटेबल डाल दीजिए, स्टीम गोभी, स्टीम ब्रोकली, स्टीम कॉर्न। टोटल क्वांटिटी कितना होगा? बॉडी वेट इंटू 5। मान लीजिए मेरा बॉडी वेट है 70 kg इंटू 5, दैट इज 350 ग्राम। 350 ग्राम इतना होता है, खाते खाते 20 मिनट लग जाएंगे तो 350 ग्राम खा पाएंगे। पेट नहीं भरेगा लेकिन चबाना पड़ेगा। इससे कम खाएंगे तो इट इज अ फूड, इससे ज्यादा खाएंगे इट इज अ मेडिसिन। कई बार लोग मुझे बोलते हैं ये कौन सी नई बात है, फल तो हम खाते ही हैं, कच्ची सब्जी भी खाते हैं, लेकिन फल आप खाते होंगे, लेकिन क्या 700 ग्राम खा तो इससे कम खाएंगे तो वो फूड है, पेट भरेगा। इतना जैसे अधिक खाएंगे तो वो मेडिसिन है। ये बात को मैं समझाना चाहता हूँ कि खाते हैं मैं नहीं जानता, मैं तो ये जानता हूँ कि इसका डोसेज ये कितने डोज पे
start working like a medicine, food as medicine, right? So लंच में कितना कच्चा सब्जी खाने के बाद, जैसे वेजिटेबल के साथ खाने के बाद, आप प्लेट 2 में घर का बना हुआ दाल, सब्जी, चावल, रोटी जो भी खाना है वो खा सकते हैं। कितना खाना है? पेट भर। आप सोचेंगे कि भाई जब मैं इतना कच्ची सब्जी खा लूंगा तो मेरा तो पेट भर जाएगा, मैं तो ये खा नहीं पाऊंगा। आपको शॉकिंग लगेगा कि पहले 2 दिन पेट भर जाएगा, तीसरे दिन इतना खाने के बाद भूख बढ़ जाएगी। पेट नहीं भरेगा, भूख बढ़ेगा। कैसे? आपकी बॉडी की मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगी। मैं फिर इंजीनियरिंग सेंस में बताता हूँ। जिस तरह से मारुति कार रखा है, मर्सिडीज बेंज कार रखा है, दोनों कार का फर्क क्या है? दोनों का इंजन, राइट? कि जितना इन पेट्रोल से मारुति कार जितना डिस्टेंस जा सकता है, मर्सिडीज जा पाएगा, उससे दुगुना चाहिए होगा, क्योंकि मर्सिडीज का मेटाबॉलिज्म रेट ज्यादा है, खपत ज्यादा है। तो आपका जो हार्ट है, आपकी बॉडी है, वो जो हार्ट जो इंजन है, वो पहले मारुति कार थी, लेकिन आपने जैसे ये खाया 2 दिन तीसरे दिन से वो मर्सिडीज बेंज वाली इंजन बनी। तो दैट इज द डिफरेंस, राइट? तो भूख बढ़ना एक निशानी है कि आपकी ताकत बढ़ रही है, या आपकी एनर्जी बढ़ रही है, आपकी यूथ बढ़ रही है, यानी कि आप हेल्दी हो रहे हैं। तो और ये कब से होगा? तीसरे चौथे दिन से होने लगेगा। तो प्लेट 2 में आप उतने खाना खा पाएंगे, रोटी से भी दाल चावल, जितना अभी बिना इसके भी खा पाते। तो कोई चीज कम करने नहीं बोला मैंने सिर्फ आपके खाने से पहले ऐड करने को, खाने के साथ नहीं बोल रहा हूं, खाने से पहले, राइट? ये छोटी छोटी बातें हैं which makes all the difference। तो लंच में यही करना है, और डिनर में क्या करना है? डिनर 8 बजे से पहले फिनिश करना है, सनलाइट जाने से पहले, सनलाइट जाते ही। और डिनर में भी आपको यही करना है, पहले कच्ची सब्जी खा लेना है, उसके बाद आपको कुछ नहीं खाना है। देखिए कच्ची सब्जी सभी खाते हैं, आप देखिए लोग बोलते हैं हम तो खाते हैं सर। मैंने बोला चलो आपके घर में 6 लोगों की परिवार बैठ जाता है, बीच में सलाद का एक प्लेट रखा रहता है, टमाटर खीरा जो भी 2-4, और खाते हुए कुछ भी चले भी जाते हैं, वो वहीं का वहीं प्लेट पड़ा रहता है, राइट? तो बस वो शोपीस बन गई रहता है। तो एक्चुअली आपका जो फूड है ना, वो ये है, ये फूड है, मेडिसिन है, ये फूड, ये खाना है, ये मेडिसिन, राइट? और मेडिसिनल प्रॉपर्टी क्यों है वो मैंने अभी लेक्चर में आपको बताया। तीसरी और आखिरी बात, जिन चीजों को अवॉइड करना है मैंने समझा दिया। पैक्ड फूड, रिफाइंड थिंग, डेयरी एनिमल फूड, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट, चाय कॉफी को मिनिमाइज कीजिए, नहीं छोड़ सकते तो 8 बजे के बाद मत खाइए। और रह रहे जो दवाइयां खाते हैं ना, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, कभी दर्द हो गया, कभी बुखार हो गया, कभी जुकाम हो गया, याद रखिए दुनिया की सबसे ज्यादा खतरनाक दवाई का खिताब जिस दवाई को मिला है, वो दवाई का नाम है पैरासिटामोल। जितने ज्यादा लोग पैरासिटामोल की वजह से किडनी या लिवर डैमेज से मरे हैं, उतना किसी भी और कारण से नहीं मरे। तो जो दवाई सबसे कॉमनली अवेलेबल है हर एक धर्मों में, वही दवाई सबसे बड़ा कारण है इंसान में डेथ। तो इसे बोलते हैं नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग। अब देखिए स्नैक्स, बीच में जब भूख लगे तो क्या ले खा सकते हैं? नट्स, ड्राई फ्रूट्स, पीनट्स, आलमंड, कैशनट, मुर्गी वगैरह खाइए। फ्रूट्स 12 बजे के बाद नहीं खाइए। नारियल पानी पीजिए, अंकुरित चने, अंकुरित मूंग खाइए, नारियल का टुकड़ा खाइए। और सबसे ज्यादा जरूरी, इसीलिए इसको आपको बता रहा हूँ, धूप 45 मिनट्स ऑफ सनलाइट। अच्छा 45 मिनट्स तो नहीं तो 20 मिनट धूप खाइए, राइट? इंस्टेड ऑफ सनलाइट। इंसान और जानवर में ये फर्क है। इंसान क्या करता है, खाना गर्म करके खाता है, फिर ठंडे कमरे में सो जाता है, राइट? एसी के अंदर। और एनिमल क्या करता है इसको उल्टा, राइट? खाने को गर्म नहीं करता है, लेकिन खाना खाने के बाद फिर धूप में बैठ के खुद को गर्म करता है। तो पहले आप खाना खाइए, फिर धूप में जाइए, अपने कुक कीजिए, राइट? तो वो जो कुकिंग है वो ज्यादा अच्छा काम करेगा। तो यहाँ तक जहां तक हम पहुंचे हैं, मैं आपको ये बता सकता हूं अपने एक्सपीरियंस से कि मेरे पास जो पेशेंट आते हैं, जो पेशेंट मैं देखता हूं, हमारी टीम देखती है, हमारी टीम कभी भी खांसी, जुकाम, सिर में दर्द हो गया, छोटे मोटे ऐसे देखते नहीं है। हमारे पास जो पेशेंट आते हैं वो लास्ट स्टेज, 4th स्टेज कैंसर वाले आएंगे, किडनी फेलियर वाले आएंगे, डायलिसिस वाले आएंगे, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट हैं, वही हम देते हैं, क्योंकि उन्हीं से देखने में फुर्सत नहीं होती। और वो पेशेंट जो है उनको हम ठीक करते हैं, और वो मेडिसिन फ्री
ये कोई नॉर्मल पेशेंट के लिए नहीं, तो अगर बहुत बीमार है वो भी ठीक हो सकता है, और अगर कोई बीमार नहीं है तो बीमार नहीं पड़ेगा। तो खैर ये सारी जो किताबें हैं, जो रेफरेंसेस हैं, अगर आपको पढ़ना है तो आप क्या कर सकते हैं, ये सारी बुक्स को फ्री डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से विष्णु.com फ्री कैश ई बुक्स, या फिर जो पढ़ना जिनको इंटरेस्टिंग नहीं लगता है तो वो कोरोनाकाल.tv में जाके वीडियो देख सकते हैं, या फिर ये इंफेक्शियस डिजीज के जो पेशेंट्स हैं हमारे पूरे देश में, भारत में करीब 500 के करीब हमारे एक्सपर्ट्स हैं, और वो एक्सपर्ट्स इन मेथड को यूज करके लोगों को डाइट बना के देते हैं, वो भी फ्री में। उसके लिए विष्णु.com/nice। अभी कोविड के टाइम पर करीब 50,000 कोविड के पेशेंट्स को हमने इसी तरह की डाइट से ठीक किया। 50,000 एक भी दवाई नहीं दी और ना ही उनमें से कोई एक मरा है, नॉट अ सिंगल केस, राइट। और उन 50,000 के बारे में क्या हुआ, कौन लोगों ने ठीक किया, कैसे ठीक किया, ये किताब में आप देख सकते हैं। तो जो बीमारियां बहुत ही भयंकर बीमारी है, आप बचोगे कि नहीं पता नहीं, उसकी रियलिटी क्या है वो जानना ये आपकी एक जिम्मेवारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप लंबा जीना ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इतनी मेहनत करो, इसीलिए कि इस मेहनत का उपयोग हम जीवन भर कर सकें। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट लिंक है बुक का या फिर ये वीडियोस का। तो आप इंजीनियर तो ही हैं और मैनेजमेंट गुरु भी हैं आप सब, तो अब अपने बॉडी की इंजीनियरिंग और अपने बॉडी का मैनेजमेंट मुझे लगता है कि शुरुआत आपको कर देनी चाहिए, एंड आई एम श्योर कि आप शायद आज से शुरुआत करेंगे। इसी के साथ दोबारा मिलने का मौका देंगे। हमने खाया तो वो मेडिसिन उनके अंदर है, तो वो बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हुई। बट जो सर बोल रहे थे कि एब्जॉर्ब नहीं होना चाहिए, वो तो अब ये फ्रूट्स खाने के बाद, क्योंकि वो भी केमिकल डालने के बाद यूरिया और कितनी चीजें वो बीमार हुए, तो वो मेडिसिन ने फ्रूट्स को देने के बाद उसके अंदर कहीं ना कहीं, ठीक है, कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट होंगी, और अगर प्रोजेक्ट है और वो बॉडी के अंदर फिर भी जाकर एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक, सारा कुछ देख रहे हैं कि हर चीज दवाई डालने से बनती है, हमारी बॉडी के अंदर डायरेक्ट नहीं डाल रहे, अंदर डाल के इनडायरेक्ट उस दवाई को खा रहे हैं, ठीक है। तो अगर दवाई वहां पे हार्मफुल है तो फ्रूट्स के लिए हार्मफुल है, और वो फ्रूट्स हम खा रहे हैं तो फ्रूट्स हमारे लिए हार्मफुल है। तो यहाँ पे ये फ्रूट्स अगर दवाई से मिलकर बने हैं, फिर भी हम फ्रूट्स खा रहे हैं, ये हेल्दी है, और दवाई खा रहे हैं वो अनहेल्दी है, ऐसा क्यों सर? ये देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, और आप मानेंगे कि जब भी मैं कहीं भी लेक्चर देता हूँ ये सवाल जरूर उठता है। अगर क्वेश्चन आंसर राउंड होता है कहीं भी, तो ये वाला सवाल पहले 2-3 क्वेश्चन में लोग पूछते हैं, जैसे कि अभी आपने पूछा, और जिन्होंने नहीं पूछा उनके दिमाग में होगा, पूछना चाह रहे होंगे। तो इस बात का जवाब आप ध्यान सुनिए, मैं 2-3 पार्ट्स का जवाब देता हूँ। देखिए आप एक एक्सपेरिमेंट कीजिए। अभी मैं आपके हॉस्पिटल में गया था, उसका एक राउंड लगाने का मौका मिला। आप लीजिए एक पैक का जूस लीजिए, रियल का जूस कोई भी जूस लीजिए पैक, और एक आप मौसमी लीजिए या संतरा लीजिए, इसको जूस निकालिए। जूस निकालने के बाद आप जूस को माइक्रोस्कोप से देखिए। जब आप मौसमी या संतरा या वाटरमेलन किसी वेजिटेबल फ्रूट का जूस देखेंगे माइक्रोस्कोप से, उसके अंदर कुछ लाइव एंजाइम, हिलते डुलते एंजाइम देखेंगे। लेकिन आप जब रियल वाला जो पैक वाला जूस में देखेंगे तो वो लाइव एंजाइम जाहिर सी बात है नहीं देखेंगे। तो होता क्या है, जैसा आपने बोला कि आप अभी एक मार्केट से फ्रूट खाएंगे तो उसके अंदर पेस्टिसाइड भी है, जैसा आपने बताया, केमिकल भी आपको बना है। तो जब आप फ्रूट खा रहे हैं तो एक्चुअली आप फ्रूट नहीं खा रहे, वो फ्रूट के अंदर वो अनजाने में या जानबूझ के जैसा भी है वो वाला जो केमिकल है वो भी आप खा रहे हैं, तो वो केमिकल आपको हार्म करेगा, राइट। लेकिन जब वो केमिकल ऐसे ट्रेवल करता है स्टमक से ऊपर से नीचे, तो जो लाइव एंजाइम है जो माइक्रोस्कोपिकली आप देख सकते हैं वो लाइव एंजाइम भी ट्रेवल करती है। तो लाइव एंजाइम क्या करती है, इस ट्रेवल के दौरान इट ग्रैब्स दैट काइंड ऑफ पॉइजन, और काफी हद तक वो पॉइजन को एलिमिनेट वो कर पाते हैं। लेकिन आप अगर उस फूड को कुक कर दें, फॉर एग्जांपल आलू लेते हैं या फॉर्मल
कुक करने से वो लाइव एंजाइम जिंदा रहेंगे, मर जाएंगे? मर जाएंगे। लेकिन वो जो केमिकल है जैसा आप बता रहे थे वो केमिकल नहीं मर सकता। कई बार लोग सोचते हैं कि हमने कुक कर दिया तो केमिकल भी चले गए होंगे, लेकिन केमिकल्स आर ऑलरेडी डेड और डेड चीज दोबारा नहीं मरती है, वो तो केमिकल है। तो जब आप किसी भी फूड को कुक करके खाते हैं तो उसके अंदर से जो लाइव एंजाइम है जो एक सोल्जर की तरह काम करता है उसको तो आपने मार दिया, लेकिन उसके अंदर जो केमिकल्स हैं वो उतने ही रहे। तो आज आप इस वक्त जो खा रहे हैं वो आप केमिकल वाला खाना आप भी खा रहे हैं सिंस यू आर कुकिंग, तो लाइव एंजाइम माइनस पे भी खा रहे हैं, राइट? तो अभी जो आप खा रहे हैं, आज जो आपने खाया, कल जो आपने खाया था, तो उसमें भी तो केमिकल थे, उसमें भी तो वही वाले पॉइजन थे जिसकी बात करते हैं। मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि सिंस पॉइजन खाने से हम अपने आप को रोक नहीं पा रहे, क्योंकि हम तो सामने वाले बाजार में जाके खरीद सकते हैं, ऑर्गेनिक तो हम खरीद नहीं पा रहे हैं, तो महंगा है, हमें नहीं रहा है, पता नहीं ऑर्गेनिक। लेकिन ये तो हम कर सकते हैं कि वो केमिकल को मारने वाला जो लाइव एंजाइम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के अंदर है वो भी हम खा रहे हैं, राइट? उसके खाने से भी मैंने देखा, जैसे मैं खुद भी कोई ऑर्गेनिक मुझे मिलता नहीं, मैं सामने वाले मार्केट से लेता हूं, लेकिन मैं अपने क्रिटिकल पेशेंट को बोलता हूं कि आप ढूंढिए तो सही ऑर्गेनिक। ये तो पहला आंसर कि आप ये करेक्टली सोचते हैं कि वो हमारे लिए हानिकारक है, लेकिन उस हानिकारक उसकी हानि को कम करने के लिए ही हमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को इन्हें रोस्टेड करना है। खाता आप भी रहे, आपने जो भी कुछ खाया वो जो भी चीज है वो तो जमीन से ही उगा है, या फिर वो एनिमल से आया है। अगर तो एनिमल से आया तो एनिमल ने भी तो उन्हीं चीजों को खाया, ऊपर से उसको इंजेक्शन भी लगे हार्मोन के, वो तो और खतरनाक हो गया, राइट? लेकिन इसको काउंटर करने के लिए जो लाइव एंजाइम है उसको हमने लिया नहीं, क्योंकि हम एज ए ह्यूमन हम सारा खाना जो खाते हैं वो कुक करते हैं, राइट? कभी देखो बिल्ली कुक करके खा ली, तो इंसान उसको कुक करके उसके लाइव एंजाइम को स्विच ऑफ कर देता है, यानी कि मार देता है। ये तो एक बात। दूसरी बात, अगर तो आपको ये लगता है कि भाई ये बहुत बड़ा एक कंसर्न है कि भाई आजकल बाजार में तो केमिकल वाले फूड मिल रहे हैं, तो इस सोसाइटी का हिस्सा तो हम खुद ही तो हैं। अगर बाजार में कुछ भी मिल रहा है या जैसी भी सोसाइटी है उसके जिम्मेवार सिर्फ बाकी लोग नहीं है, वो हम भी तो जिम्मेवार हैं। ऐसा ना हो उसके लिए आपका कंट्रीब्यूशन क्या है? सिर्फ आपने डिमांड किया कि वो नहीं मिल रहा है, लेकिन आप भी तो इसी दुनिया में रहते हैं, क्यों नहीं आप इनिशिएटिव लेते हैं, कुछ अवेयरनेस कर सकते हैं। जैसे हमारे कुछ दोस्तों ने मिलकर छोटा सा लैंड किराए पे ले लिया, एक माली लगा दिया, सोचा कि चलो 25% जो भोजन है 5% भोजन यहीं से आएगा, और उसको देख के बाकी लोग और मोटिवेट होंगे, एनकरेज होंगे। तो बोलने का मतलब है प्रॉब्लम है क्योंकि हम उसके सोल्यूशन के पार्ट नहीं, राइट? एक दिन में सोल्यूशन नहीं आएगा, लेकिन मैं खुद भी ये सोचता हूँ कि अगर केमिकल होने के बावजूद भी ये डाई काम कर रहा है, तो अगर केमिकल फ्री हो जाए तो ना जाने कितनी जल्दी से काम करेगा, राइट? तो ये सवाल आने का मतलब ये है कि हमारा ध्यान उस तरफ गया, और ध्यान उस तरफ जाने का मतलब है कि पहला स्टेप तो हमने ले लिया, एटलीस्ट हम जागरूक हैं, और जागरूक है तो हमें वो थोड़ा करना पड़ेगा। जैसे हमारे कुछ दोस्तों ने किया है किचन गार्डन, कि कुछ छोटे छोटे ऐसे पौधे होते हैं जो किचन में उगाए जा सकते हैं, और वो जैसे मैं करता हूँ गेहूं के ज्वारे, सॉइल मैं खुद उगाता हूँ, सॉइल जूस निकाल के मैं खुद इसको बनाकर रोज पीता हूँ, 10 कैरेट लगा दिया। तो जितना हो पाया कुछ तो स्टेप करो। अगर आप सब लोग थोड़ा थोड़ा करोगे और लगातार करोगे तो हो सकता है ओवर पीरियड 20 इयर्स कुछ बदलाव आ जाएगा, क्योंकि ये चीज जो अभी बनी है वो आज की नहीं बनी है। कई साल तक, पिछले 50 साल तक लोगों ने कुछ किया नहीं इस डायरेक्शन में, और वो केमिकल बढ़ता गया, और आने वाले दिनों में और भी बढ़ेगा। जीएमओ आता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, राइट? तो जीएमओ जिन देशों में है उन देशों में जब बच्चे पैदा होते हैं वो बच्चे मंदबुद्धि पैदा होते हैं, ADHD, राइट? तो वो जीएमओ यहाँ पे आ जाएगा तो ऐसा क्यों होगा? तो ये चीजें को घटाना भी हमारे काम है। तो आपके ये सवाल का जवाब पार्शली मैं दे पाया। और कोई सवाल पूछो? देखिए इसमें मैं रूल ऑफ थंब बताता हूँ क्या होगा। डायबिटीज की जो पेशेंट है, दो तरह के डायबिटीज के पेशेंट होते हैं। ये अगर सवाल नहीं पूछेंगे आप ये वाला सवाल, तो कुछ लोगों की डेथ भी हो सकती है। मैं एग्जाम्पल देकर बता रहा हूँ। डायबिटीज के पेशेंट या तो दवाई लेने वाले होते हैं या इंसुलिन लेने वाले होते हैं। मान लेते हैं इंसुलिन वाला पेशेंट लेते हैं जो ज्यादा खतरनाक है, 40 मिनट इंसुलिन लेता है।
40 यूनिट इंसुलिन लेता है, 40 इज ए गुड अमाउंट। उसने सोचा आपके लेक्चर सुन के चलो मैं आज से डाइट करूंगा। आपने उसको समझा दिया देखो भाई आप ऐसे से खा लो, टेक 1 टेक 2 फ्रूट खाना है, ऐसे करना है। जैसे ही वो ऐसा करेगा, जिस दिन वो करेगा उस दिन उसकी बॉडी की इंसुलिन बनाने की क्षमता एकदम बढ़ जाएगी। बॉडी एक्सेस इंसुलिन बनाएगा। लेकिन उसने क्या किया, इंसुलिन जो 40 यूनिट देता था आज भी कितना यूनिट लेगा, 40 ही ले रहा है पर टाइम। तो क्या हो रहा है, ब्लड शुगर एकदम डाउन हो जाएगा, जिससे कोमा डेथ मैंने शुरू में बता दिया। तो रूल ऑफ थंब, आपके सवाल का जवाब ये है कि अगर इंसुलिन लेने वाला पेशेंट है तो उसको आपको बताना है कि जिस दिन भी डाइट शुरू करेंगे उस दिन आपको इंसुलिन का डोज 50% कम करना है, 50% कम करेंगे और ये डाइट लेंगे तो ब्लड शुगर आपका वहीं रहेगा जितना पिछले दिन इस डाइट के बिना डबल इंसुलिन से था। 50% कम करना है, प्लस दिन में 3 बार मॉनिटर भी करना है। 50% अप्रॉक्सीमेट, कुछ लोग 60% कम करना पड़ता है, कुछ लोगों को 40% कम करना पड़ता है, लेकिन ऐसा कोई नहीं जिनको कम नहीं करना पड़ेगा। जो लोग दवाई पे वो रूल ऑफ थंब, दवाई आप छोड़ देंगे उसी दिन से और इसी डाइट पे रहेंगे तो अटैकर का ब्लड शुगर चेक करेंगे और लगातार 3 दिन तक चेक करेंगे तो बिना दवाई के अक्सर मैंने देखा ब्लड शुगर वहीं मिलता है जहां वो दवाई के साथ मेंटेन कर रहे थे। तो दवाई है तो वो छोड़ा जा सकता है 100%, इंसुलिन है तो वो छोड़ा जा सकता है 50%, बट विद मॉनिटरिंग द ब्लड शुगर 2-3 टाइम्स अ डे। तो ये थोड़ा बहुत छोटा मोटा केयर है। इसीलिए मैंने क्या किया, मैंने आपको इशारा किया कि भाई आप इस वीडियो में जाके देखेंगे ना, तो जहां तक मैंने ये ट्रेनिंग यहाँ पे खत्म की, इसके आगे के सवालों के ट्रेनिंग के जवाब वो इस वीडियो में मिल जाएंगे या इन बुक में मिल जाएंगे। क्योंकि सर ने मुझे एक छोटा दिया, अगली बार जब मैं आऊंगा मैं 4-5 घंटा लूंगा तो और मैं क्लियर कर पाऊंगा। सवाल है और ये सवाल आखिरी होने का भी कारण है और वो भी बता देता हूँ। आपने भी सवाल पूछा जो स्किन डिजीज है, स्किन की डिजीज है वो सबसे ज्यादा टाइम लगता है क्योर होने में। कुछ बीमारियां हैं जैसे DIB टाइप में रहती है वो एकदम 2-3 दिन में ठीक होने लगेगी, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, राइट, या स्टमक इश्यूज हैं। बीमारियां हैं तो 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, उनमें से स्किन वाली बीमारी। कारण ये कि जो बॉडी का ऑर्गन स्टमक से जितना दूर है उस वाले बॉडी को क्योर करने, उस वाले ऑर्गन को क्योर करने के लिए उतना ज्यादा समय लगता है। तो जब कोई पेशेंट मेरे पास आता है, कैसे मैं पता करता हूँ कि ये कितना समय लगेगा ठीक होने में, मैं ये देखता हूँ कि ये जो ऑर्गन की बात कर रहा है वो ऑर्गन स्टमक से कितना दूर है। अगर स्टमक की ही कोई प्रॉब्लम है तो 2-3 दिन में ठीक हो जाती है। स्टमक जैसे एसिडिटी हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, अल्सर हो गया, ट्यूमर हो गया, बड़ी जल्दी ठीक होगी, बहुत ही फास्ट। लेकिन स्किन जो है वो स्टमक से बहुत दूर है। जितना दूर ऑर्गन होगा हमने यही देखा है उतना समय ज्यादा लेगा, क्योंकि फूड आएगा स्टमक में फिर वो न्यूट्रिशन जाएगा, दैट टेक्स टाइम। तो इस तरह से है जैसे ब्रेन की डिसऑर्डर है, पार्किंसन है, अल्जाइमर्स है, वो 6 महीना 9 महीना वो ज्यादा टाइम देते हैं, राइट। लीवर के डिसऑर्डर है वो बहुत थोड़े टाइम देते हैं। तो इस तरह से जितना दूर ऑर्गन होगा उतना ज्यादा टाइम देगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात है, ठीक सभी हो जाते हैं, समय ज्यादा लगता है, राइट। तो ये आखिरी ऑर्गन विल टेक मोर टाइम और ये आखिरी सवाल भी था। हमारे कॉलेज की तरफ से जो मोमेंटो है वो चेयरमैन सर डॉक्टर रियासी सर को सर जो आपको बुलाए हैं हमारे डायरी के लिए, मैं चाहूंगा कि आप चेयरमैन सर को ये हमारे कुछ हमारे जो फैकल्टी की रिक्वेस्ट जो PPT बन रही है ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव है आपकी, मतलब हम लोग ज्यादा
the students and Dr. Chaudhary. At end, I want to thank everyone, including my students. So students, you have shown full interest in last 1.5 hours. So please clap for yourself also. Yes. So let us welcome and thanks Dr. Chaudhary on behalf of COER. Again, sir, we will call you for a long session now because it's lunch time and they have to go for lunch. So please welcome sir, thanks to sir, and after that you can go for your lunch, and after the lunch your regular classes will be conducted. Thank you sir.